الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد سے ہی گزر گئے ہو. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے. اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینا برسایا. بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے مدین کی طرف ان کی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو. اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو. صدق اللہ العظیم. Jazakallah khair, Sister Rabia. That was a treat for our ears, mashallah. So, okay, coming over to the main part of our program, that is our speech. So, before we have our speech, I'd just like to mention this. After the speech, we'll be having a short Q&A session. So, during the speech or after the speech, if you have any doubts, you can put your questions in the chat box. And after the speech, in the Q&A session, our speaker will be taking up your questions. So, as you all know, the topic of our program today is LGBTQ, the gender debate and Muslim response. And as more and more people are coming out as members of this community, we Muslims, especially the Muslim youth, we often find ourselves stuck between people who are promoting homosexuality, people who are supporting homosexuality, and people who are completely against it. And we often find ourselves questioning whether Islam is inclusive of the rights of homosexuals or not, and questions like, what is the Islamic ruling on people who are born queer? So, to clear such doubts of ours, we have our speaker tonight, Brother Khan Yasir. Brother Khan Yasir is a research scholar at Department of Political Science, University of Delhi. He teaches political science and history at Indian Institute of Islamic Studies and Research, and is also a director in charge over there. Currently, he is associated with various research groups, and besides being a regular contributor in various newspapers and journals, he has also many books on history, Islam, and women. Jazakallah khair, Brother Khan Yasir, for joining us today. Over to you, sir.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. صدق اللہ العظیم. محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. LGBTQ کے ایشو کو آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بیسک باتیں ہیں وہ یہ اصطلاحیں کیا ہیں، اپنے آپ میں بہت زیادہ کنفیوزنگ اصطلاحیں، بہت ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں. وہ ٹرمز کیا ہیں، آپس میں انٹرچینجبلی یوز ہو سکتی ہیں یا ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے، کیا نوانسز ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں بھی آئیں گی، بہت تفصیل سے نہیں لیکن انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اور بیسیکلی دا جینڈر ڈیبیٹ جو ہے کہ جینڈر کیا ہے اپنے آپ میں، اور اس کے سلسلے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں یا جو آرگومنٹس کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، یہ بات ہم دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میری گفتگو کے یعنی تھوڑا سا جب مشکل موضوع ہوتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے بتا دیا جائے کہ ہماری گفتگو کا اسٹرکچر کیا ہوگا، تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ رہے اور وہ ان کی امید کے مطابق چیزیں آئیں. ہماری گفتگو کے انشاءاللہ 4 حصے ہوں گے، جس میں سے پہلے حصے میں پہلے اور مختصر ترین حصے میں جو کہ تمہیدی حصہ ہے، اس میں ہم بہت اصولی نوعیت کی کچھ باتیں کریں گے اور ایک طرح کا مقدمہ بنے گا، جس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک میں انٹر ہوں گے. جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی بڑا مختصر ہے، اور اس حصے میں ہم جینڈر کے حوالے سے یا انسانوں کی پیدائش کے حقائق کے سلسلے میں کچھ اصولی باتیں نوٹ کریں گے. تیسرے حصے میں جو کہ بالکل جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تھیم ہے، یہ طویل حصہ ہے، اور اس میں LGBTQ یہ اصطلاحیں اور جینڈر کے سلسلے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں ان میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا پرابلمس ہیں، اس کو دیکھیں گے. اور چوتھا حصہ ہمارا کنکلوڈنگ ہوگا، جس میں ہم کیا ٹیک اوے ہے ہمارے لیے، یا کیا باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو ہمیں لینا چاہیے اور جس کے حساب سے ہم جن کو ہم یاد رکھ لیں، تاکہ جب اس طرح کی ڈیبیٹ ہو یا جب اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے آئیں تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہوں اور کسی قسم کی فکری یا عملی گمراہی میں مبتلا ہونا آسان نہ ہو. یہ چیز تو یہ آج کی ہماری گفتگو کا اسٹرکچر ہوگا. تو سب سے پہلے تمہید کے طور پر یہ عرض ہے کہ، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بطور تذکیر ہی اس کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اور اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اور جب اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو قرآن میں متعدد جگہوں پر اس نے ایک اہم اصول کا ذکر بھی کیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، اس میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں تو ان کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. تو کہیں قرآن میں اس بات کا ذکر آیا ہے انسانوں پر زور دیتے ہوئے کہ انسان جوڑے میں پیدا کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر سورہ نبا میں کہا گیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کہیں ایسی آیات بھی ہیں قرآن میں متعدد جگہوں پر. مثال کے طور پر سورہ یاسین کی یہ آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، یا ایک سورہ ذاریات کی یہ جو آیت ہے ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اس طرح کی آیات میں اس بات پر ایمفیسس کیا گیا ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے اور اس میں جو مخلوقات ہیں ان کو جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہے. اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں، اس پر پھر سے پلٹ کر آئیں گے ہم تھوڑی دیر میں. اس کے بعد یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کائنات میں بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو خلافت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور انسان کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ اس سے اس کو سرفراز کیا ہے، اس سے اس کو نوازا ہے. تو خلافت کی یہ جو ذمہ داری ہے، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان لگا بدھا نہیں ہے، بلکہ اس کو بہت ساری آزادیاں حاصل ہیں، اس کو فریڈم ہے اس کے پاس ایکٹ کرنے کے لیے. یعنی اس کو کلیئرٹی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اپنی طرف سے کہ سچا راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے. اس کلیئرٹی کے لیے انسانوں کی شروعات جو ہوئی تو وہ ہدایت کے ساتھ ہوئی. آدم علیہ السلام کو جہاں پہلے انسان تھے وہ وہاں پہلے نبی بھی تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تعلیم دی. تو انسانوں کی شروعات روشنی میں ہوئی، ہدایت کی روشنی میں ہوئی، اور اس کے بعد جب انسان گمراہی میں بھٹکے تب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور انسانوں کو سیدھی سچی راہ دکھائی. ایک سورہ اعلیٰ میں کہا گیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، بڑا بلند و بالا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد تناسب قائم کیا اور تقدیر بنائی اور انسانوں کو راہ دکھائی. تو یہاں پر یہ
दोनों चीज़ें इसमें शामिल है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा, और जहाँ उसमें मादी ज़रूरियात शामिल है, मटीरियल नीड्स शामिल हैं कि इंसान को नींद की ज़रूरत है तो उसका सामान है, दुनिया में आराम कैसे किया जाए, इंसान को खाने की ज़रूरत है तो उसका सामान है, इंसान को आराम की ज़रूरत है तो उसका सामान है, इंसान की जिनसी ख्वाहिशात हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं तो उसका सामान इस दुनिया में है। तो जहाँ इंसान की मादी ज़रूरियात को रिस्क फराहम करने का अल्लाह ताला ने वादा किया और उस वादे को लगातार निभाया चला जा रहा है, उसी तरह इंसान की जो एक ज़रूरत रूहानी है, हिदायत की ज़रूरत है, उसको भी अल्लाह ताला ने पूरा किया है, और वो भी इंसान को फराहम की गई है। इंसान ये नहीं कह सकता किसी भी एज और ज़माने में कि इस हिदायत से हम महरूम हैं, हम नहीं जानते कि सीधा रास्ता क्या है। अगर इंसान जानना चाहे तो उसके पास ऐसे रास्ते हैं कि वो हिदायत जान सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी एक है, क्योंकि ये हिदायत जहाँ है वहाँ एक इम्तिहान भी है इंसानों के लिए, तो इसीलिए इंसानों को हर चीज़ की तफसीलात बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ के तौर पर नहीं बता दी गई हैं, बल्कि बहुत सारी बातें उसके ऊपर भी छोड़ी गई हैं, उसके अपने फ्रीडम दिया गया है, उसके अपने इज्तिहादात पर हैं। तो कुल मिलाकर इंसान के पास नॉलेज हासिल करने के 3 सोर्सेज हैं रफली, अगर हम बयान करें उसको। एक सोर्स तो उसकी अपनी फितरत है, जो उसका अपना नेचर है, वो उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करता है। मिसाल के तौर पर किसी को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भूख लगे तो खाना खाओ, उसके अंदर भूख का जज्बा जैसे ही पैदा हुआ और वो उसका एहसास हुआ, वो फ़ौरन खाने की तरफ लपकेगा। ये चीज़ उसको फितरत सिखा दे रही है। इसी तरह आप दीगर नीड्स को भी इस पर कयास कर सकते हैं। फिर जो दूसरा सोर्स है नॉलेज के लिए, वो इंसान की अपनी अक्ल है, उसकी अपनी रैशनल फैकल्टी है, जिसके थ्रू वो चीज़ों पर गौर करता है और सही नतीजों तक पहुँचने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है इन 2 सोर्सेज में कि जहाँ ये सोर्सेज इंसान की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं, वहाँ इंसान की गलती की तरफ, बुराई की तरफ भी रहनुमाई कर सकते हैं। चुनांचा इंसान जहाँ अहसन तक़वीम हमें नज़र आता है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलता है और अपने कामों को पूरा करता है, हिदायत से इनहराफ या डेविएशन नहीं करता है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि इंसान कई मरतबा अस्फला साफिलीन के दर्जे को भी पहुँच जाता है, यानी बिल्कुल ही गिरा हुआ और जानवरों से भी बदतर हो जाता है अपने आप में, जब वो अपनी फितरत को मस्क कर देता है और अकल से उस तरह काम नहीं लेता जैसा कि उसे लेना चाहिए। तो ये दोनों सोर्सेज बहुत अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आम तौर पर सही रहनुमाई करते हैं, लेकिन इन दोनों सोर्सेज में गलती की गुंजाइश भी होती है। इंसान अगर नाअहली का मुजाहरा करे, नालायकी का मुजाहरा करे, तो अपनी फितरत को, अपने नेचर को मस्क कर सकता है, ख़राब कर सकता है, अपनी अक्ल से गलत नतीजे अख्ज़ कर सकता है। तो ये दोनों इंसान की सही रहनुमाई के लिए बने हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल भी मुमकिन है। इंसान अपनी फितरत को मस्क करके, अपनी अकल से गलत नताइज अख्ज़ करके गुमराह हो सकता है। और इसीलिए हिदायत का एक तीसरा सोर्स भी इंसानों को दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, और वो सोर्स है डिवाइन गाइडेंस या हिदायत इलाही, वही इलाही कह लीजिए, जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स या ओनली ऑथेंटिक सोर्स है नॉलेज का। यानी ये एक क्राइटेरियन है, अपने आप में कसौटी है, जिसकी रहनुमाई में अगर हम फितरत के दायात का इस्तेमाल करें और जिसकी रहनुमाई में हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह हम गुमराह नहीं होंगे। तो ये बात हमारे लिए एक उसूल की हैसियत रखती है कि कुरान और सुन्नत यानी वही इलाही की रोशनी में हमें अपनी फितरत को भी गाइड करना है, उसको भी सीधे रास्ते पर लाना है, इस बात का जायज़ा लेना है कि कहीं वो मस्त तो नहीं हो गई है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई है, और इस बात का भी जायज़ा लेना है कि कहीं हमारी अकल तो नहीं बिगड़ गई है, हम बेवकूफ़ तो नहीं हो गए हैं, हमारी अकल मत तो नहीं मारी गई है कि हम गलत नताइज पर पहुँच रहे हैं। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। बुजुर्गों के रसूम व रिवाज या मुल्क के कानून या दुनिया में क्या चल रहा है, या फातिह और गालिब कौमें जो सुपर पावर्स हैं उनके मुल्क में क्या फैशन है, इससे ये चीज़ें तय नहीं होंगी, बल्कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हम इन तमाम चीज़ों को परखेंगे, उसमें से जो चीज़ काबिल कबूल नज़र आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो चीज़ काबिल रद्द नज़र आएगी, चाहे उस पर पूरी दुनिया ही क्यों ना अमल करे, हम उसको रद्द कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो उसूल ये है कि नज़रियात हम पहले से कायम कर कर कुरान और सुन्नत का उन नज़रियात के स्टैंडर्ड्स पर मुताला नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और सुन्नत की कसौटी पर, टेस्ट स्टोन पर हम जो दुनिया के थॉट्स हैं, जो नज़रियात हैं, उनका मुताला करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो गुमराही का खतरा बढ़ जाएगा। अगर हमने अपनी अकल की रोशनी में, फितरत की रोशनी में, या दुनिया में चलने वाले फैशन की रोशनी में कुरान और सुन्नत की हिदायत को जायज़ा लेने या उससे रूगर्दानी करने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो हमें गुमराह होने से कोई नहीं रोक सकता। सही तरतीब यह है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी फितरत को भी गाइड किया जाए, उसका भी एहतिसाब किया जाए, अपनी अकल को भी गाइड किया जाए, और दुनिया का जायज़ा, दुनिया के नज़रियात और तफक्कुरात का जायज़ा इसकी रोशनी में लिया जाए। ये पहली बात थी जो मुझे अर्ज़ करनी थी। इसके बाद अब हम अपने टॉपिक से ज़रा करीब होते हैं और अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से पर आते हैं। इंसानों की पैदाइश के सिलसिले में एक बात का जिक्र किया गया इससे पहले वाले हिस्से में, और वो उसूल ये था अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को जोड़े में पैदा किया है। इंसानों के सिलसिले में हम देखें तो
इंसान जब पैदा होते हैं तो वो बॉयज़ या गर्ल्स होते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस होते हैं। सेक्स रेशो की अगर बात कर लें तो उमूमन लड़कियां ज़रा ज़्यादा होती हैं। ये सेक्स रेशो हमें गड़बड़ इसलिए नज़र आता है दुनिया में, खुसूसन हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो इंसान ने अपने ऊपर लाद लिए हैं, उसकी वजह से लड़कियों की पैदाइश को ख़राब समझा जाता है और इंसान फीमेल फिटिसाइड के ज़रिए या इन्फेंटिसाइड के ज़रिए लड़कियों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं और इसीलिए वो रेशो गड़बड़ा जाता है कई मरतबा। वरना अमूमी बात यह है कि लड़कियों की शरह पैदाइश ज़्यादा होती है, उनका जो बर्थ रेट है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बचपन में, बहुत ही बचपन में, यानी बिल्कुल नौज़ायदगी की उम्र में लड़कों की जो मरने की शरह है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, वो ज़रा ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर पॉपुलेशन में लड़कियों की तादाद अगर सारे नेचुरल कॉजेस हों और किसी भी डेलिब्रेट चीज़ के ज़रिए किसी डेलिब्रेट इंटरवेंशन के जरिए प्रॉब्लम ना पैदा की जाए तो लड़कियों की शरह लड़कों से ज़रा ज़्यादा होगी। तो ये एक बात है जिसके थ्रू आप जाकर ज़रा तादुद अज़वाज और इस तरह के लॉजिक, पॉलीगैमी वगैरह की भी बरामद कर सकते हैं। ये हमारा मौजू नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा इसरार मुझे नहीं है फिलहाल। तो रफली 50-50 या आप उसको थोड़ा सा 45-55 या जो भी कुछ रेशो आप करना चाहें, वो रेशो हमें नज़र आता है, नज़र आएगा लड़के और लड़कियों में, अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा और खामखा की इंटरवेंशन नहीं की जाएगी। इसमें एक और चीज़ है जो ऐड करनी है, और वो ये करनी है कि इसमें कुछ हिस्सा ऐसा, बहुत ही नेग्लिजिबल हिस्सा, नेग्लिजिबल मैं तादाद के हिसाब से कह रहा हूँ, वो अफराद हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक ऐसी तादाद भी होती है जिसको हम इंटरसेक्स कहते हैं इंग्लिश में। 0.018% अफराद ऐसे हैं दुनिया में जो रिपोर्ट किए गए हैं कि वो इस जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का या मेल और फीमेल का, उसमें नहीं आते हैं। और ये चीज़ हमारे इसका एक इशू है, एक मौजू है। इस तादाद को थोड़ा सा इख्तिलाफ है क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, किसी को इंटरसेक्स कहने का, इसमें इख्तिलाफ है। असल में इन सब डिटेल में अगर गए तो हम अपना जो मौजू है वो छोड़ देंगे, तो इसीलिए मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो इंटरसेक्स की उमूमन जो एक तादाद बयान की गई है, जो एक नॉर्मल तादाद आप कह सकते हैं, वो 0.018%, और आप जान सकते हैं कि परसेंट के हिसाब से तादाद बड़ी कम है। तो इसको तादाद के हिसाब से, अफराद की इंपॉर्टेंस और अफराद के अपने इंडिविजुअलिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन एक तादाद के हिसाब से मैं इसको नेग्लिजिबल तादाद कह रहा हूँ। तो ये मिसकंसेप्शन ना हो किसी को भी कि ये उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, अपनी उनकी इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस है, वो शख्सियात हैं, लेकिन ये कि उनकी जो तादाद है वो एक न्यूमेरिकल एतबार से वो तादाद नेग्लिजिबल है। इस पर एक और स्टैटिस्टिक्स जोड़ लूँ ताकि वो आ जाए कि 0.02% से 0.05% के दरमियान, मुख्तलिफ डेफिनेशंस के एतबार से, बर्थ के दौरान या बर्थ के बाद डॉक्टर्स रिपोर्ट करते हैं एम्बिगुअस जेनिटल्स, यानी हम फैसला नहीं कर सकते इनके जेनिटेलिया को देखकर के ये मेल हैं या फीमेल हैं। तो ये तादाद घूम फिर कर 1% से बहुत कम, आधे % से बहुत कम ये तादाद रहती है। तो आदाद शुमार के एतबार से, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपने आप में बड़ा मसला नहीं है। अब सवाल ये कि किया क्या जाए। ये अपने आप में एक नेचुरल इशू है, और अगर इसको नेचुरल इशू कहा जाए तो बिल्कुल मतलब बात मुनासिब है। ये बात याद रखिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि इंटरसेक्स का जो प्रॉब्लम है या मसला है वो अपने आप में एक नेचुरल इशू है। इसको कैसे हल किया जाए, तो इसमें मुझे ये बात करनी है, और खुसूसन जो हम मेरे नौजवान सामने हैं वो मुखातिब हैं इस बात के कि ये कोई नया इशू नहीं है अपने आप में। फ़ुक़हा इस्लाम ने बहुत फ़िक़ही किताबों में बड़ी तफसील से ये मुबाहिस इस पर उठाए हैं, इससे डील किया है। इस इस्तिलाह में बात की जाए तो कहा जा सकता है कि एक बच्चा जो पैदा होता है वो या तो मुज़क्कर होगा यानी लड़का होगा, या मुअन्नस उसका जेंडर होगा यानी वो लड़की होगी, या फिर ये जो 0.018 है इसको कहेंगे मुखन्नस, ये इंटरसेक्स होगा उसका जेंडर अपने आप में। लेकिन फ़ुक़हा ने इस बात पर जब गौर किया, और हमारे मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जुमले मुतरज़ा के तौर पर कई बातें बीच बीच में आ जाएंगी, तो हमारे फ़ुक़हा ने बहुत ही शानदार किस्म की रिसर्च की है बहुत सारे मामलात में, चाहे वो हैज़ और निफास के मामलात हों, चाहे वो ये मुखन्नस वाला मामला हो या और दीगर मामलात हों। तो इस मामले में जो हम फ़िक़ही किताबें पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस हद तक जाके उन्होंने रिसर्च की है, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वही बताती हैं कि हम मुखन्नसों की एक बड़ी तादाद को, यानी अब वहाँ पर स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है लेकिन उनके बोलने के हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि 80 to 90% तादाद को आप देखिए, 0.018% की 80 to 90% तादाद
मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आप देखते रहिए कि तादाद कितनी कम होती चली जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये तादाद को मुखन्नस होने के बावजूद, यानी जेनिटली एम्बिगुअस होने के बावजूद, इनको मेल या फीमेल में क्लासिफाई किया जा सकता है, मुज़क्कर या मुअन्नस में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज उन्होंने बयान किए हैं। ये इस मामले में इख्तिलाफ है, मुझे जो कुछ मिल सका मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तफसीलात के लिए फ़िक़ही किताबों का मुताला किया जा सकता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो डोमिनेंट जेनिटेलिया है, यानी ऐसा होता है कि इंटरसेक्स जो होंगे उनमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के जो शर्मगाहें हैं वो पाई जाएंगी, या दोनों नहीं पाई जाएंगी। तो ज़्यादा सूरत हाल ये होती है कि किसी न किसी सूरत में दोनों पाई जाती हैं। तो इसमें जो डोमिनेंट होगी, यानी जिसका यूज़ हो रहा होगा, जो खाली नहीं होगी अपने आप में, उसका मुशाहिदा किया जाएगा। और बचपन में अगर इसके मुशाहिदे के नतीजे में ये बात तय हो जाए कि कौन सी जो जेनिटेलिया है वो ज़्यादा डोमिनेंट है या वो यूज़ हो रही है फुजले के अखराज के लिए या डिफिकेशन वगैरह के लिए, यूरिनेशन वगैरह के लिए, तो उसके एतबार से क्लासिफाई किया जाएगा कि इस मुखन्नस को मेल में क्लासिफाई करें या फीमेल में क्लासिफाई करें। यहाँ पर अगर डाउट पैदा होता है, यानी मान लीजिए इसमें कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो फुक़हा ने कहा कि तब देखा जाएगा कि ये फ़र्द जो एक नेचुरली ग्रो कर रहा है, जो मुखन्नस है, इसके रहन सहन का तरीका कैसा है, इसमें कुछ अलामात ज़ाहिर हो रही हैं क्या अपनी जेंडर के हवाले से, तो किस किस्म की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, और उस पर देखकर कोई हुक्म लगाया जाएगा कि इसको मुज़क्कर क्लासिफाई किया जाए या मुअन्नस क्लासिफाई किया जाए। जब ये बिल्कुल बुलूगत की जो आम उम्र होती है उसको पहुंचेगा और तब तक फैसला नहीं हो सका है, तब इसके अपने मैलान का, इसकी अपने रुझान का, अपने अट्रैक्शन का जायजा लिया जाएगा कि ये किसकी तरफ माइल है, क्योंकि इंसान के अंदर नेचुरल जो बात है कि वो अपोजिट सेक्स की तरफ माइल होगा, तो इसके मैलान का जायजा लिया जाएगा और उस पर भी फैसला किया जा सकता है। दाढ़ी पर या और जो प्यूबर्टी के दौरान जो जिसमें तब्दीलियां आती हैं, उनसे भी ये फैसला हो सकता है कि ये मुज़क्कर की तरफ ये जा रहा है या मुअन्नस की तरफ या उसके अपने मैलान की तरफ। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज बताए हैं जिसके बलबूते पर जो मुखन्नस पॉपुलेशन है या सो कॉल्ड मसला है, उसकी बड़ी हद तक उसको सॉल्व किया जा सकता है। और बहुत ही कम तादाद ऐसी बचती है जो इन तमाम क्राइटेरिया से गुजरने के बावजूद फैसला न किया जा सके कि इनमें इस फर्द के लिए मेल का या फीमेल का हुक्म लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। इस कम तादाद को फ़ुक़हा ने या फ़िक़ही लिटरेचर में खुनसा मुश्किल के नाम से याद किया जाता है। ये बहुत ही कम तादाद होती है। मैं फिर एक बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें 0.018% ऐसे हैं जो जेनेटिकली एम्बिगुअस करार दिया गया है, और इनके भी बहुत बड़ी तादाद को अगर फ़ुक़हा का क्राइटेरिया अप्लाई किया जाए तो मेल या फीमेल में क्लासीफाई किया जा सकता है। और वो बाज़ाब्ता, आजकल तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी खैर काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में फ़ुक़हा ने ये किताबें लिखी थी, उस ज़माने में भी एबली वो लोग फंक्शन कर चुके थे, और उनका जो ज़ायद उज़ू थे, जो ज़ायद पार्ट्स थे बॉडी के, उनको सिर्फ एक वेस्टिजियल पार्ट्स के तौर पर ट्रीट करके वो काम, तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उन्होंने अपने फंक्शंस अंजाम दिए थे। जो ये खुनसा मुश्किल है, यानी ये जिनको तमाम इन क्राइटेरिया से गुजरने के बावजूद क्लासिफाई नहीं किया जा सका, इनके लिए जो फ़ुक़हा के अहकाम हैं, उनकी रोशनी में अगर जायज़ा लिया जाए तो कुछ पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि एक तो वो इंसान है, तो उनके इंसानी हुकूक़ बहरहाल हैं, उन पर शरीयत लागू होती है, इस मामले में उनकी अपनी कोई गलती नहीं है, तो वो लायक मलामत नहीं है। वो मुसलमान है तो शरीयत के मुकल्लफ होंगे, अलबत्ता उनके लिए जो अहकाम है वो मुख्तलिफ होंगे। जैसे हम देखते हैं कि इस्लामी शरीयत में मर्दों का ख्याल करते हुए कुछ बहुत सारे अहकाम हैं जो तमाम इंसानों के लिए कॉमन है, लेकिन बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जिसमें जेंडर वाइज तफरीक की गई है, मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। तो इन मामलात में ये जो खुनसा मुश्किल है, इनके अहकाम अलग होंगे। इंटरसेक्स में ये बात फिर बीच में आ जा रही है। जो लोग, जो अफराद मेल या फीमेल में क्लासीफाई हो जाएंगे उन तमाम क्राइटेरिया से गुजरकर, उन पर मेल या फीमेल के अहकाम ही इतलाक होगा उनका। इंटरसेक्स या मुखन्नस के अहकाम का इतलाक उन पर होगा जिन पर कोई फैसले तक नहीं पहुंच पाए इन तमाम क्राइटेरिया से गुजरकर, जो खुनसा मुश्किल हैं इन पर, और इन पर शरीयत का और दीगर चीज़ें होंगी। इनके लिए एहतियाती तदाबीर का जिक्र किया गया है कि ये किस तरह से पर्दा करें। रेशमी कपड़ा या जेवर जो मर्दों के लिए मना है वो इनके लिए भी मना होगा। इनका सतर नहीं खोलना चाहिए, बगैर महरम के सफ़र नहीं करना चाहिए, किसी नामहरम से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, खिलवत नहीं करनी चाहिए, हज के दौरान ये सिले हुए कपड़े पहनेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे अहकाम हमें फ़िक़ही लिटरेचर में मिलते हैं। तो पता ये चला कि ये कोई नया इशू अपने आप में नहीं है। इस इशू पर फ़ुक़हा ने बड़ी तफसील से गौर फ़िक्र किया है, और इस तफसील से गौर फ़िक्र करने के बाद इस मसले को हल कर दिया है तकरीबन। और इसके बाद जो थोड़ी सी चीज़ रह गई है, उसको जो थोड़ी तादाद रह गई है,
उसके लिए भी अहकाम बयान किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल लखोदख छोड़ दिया है अपने आप में। तो ये हिस्ट्री हमें अपने पास मिलती है और हमारे फ़िक़्ही लिटरेचर में बहुत तफसील के साथ ये मसाइल डिस्कस किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन मसाइल से तारीखी तौर पर अनअवेयर रहे हों। तो ये दूसरा हिस्सा था हमारी गुफ्तगू का, जिसमें हमने ये देखा कि नेचुरली जो प्रॉब्लम मौजूद है, हालांकि तादाद के एतबार से मैं फिर कहूँगा कि इंडिविजुअल एतबार से हर फर्द इंपॉर्टेंट है, दुनिया में आने वाली हर जान इंपॉर्टेंट है, लेकिन तादाद के हिसाब से जो मसला है अपने आप में इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको बनाने की कोशिश की जाती है। अब आते हैं हम अपनी गुफ्तगू के तीसरे और मेन हिस्से की तरफ, जो है आज की जो तमाम इस्तिलाहें राइज हैं उनसे मुताल्लिक़ है। LGBTQ ये आम है, वरना इसमें LGBTQIA+, LGBTQIAPP+ और न जाने जितने अल्फ़ाबेट मौजूद हैं तकरीबन सभी ऐड कर दिए गए हैं। तो इसमें जो चीज़ है वो आप सबको पता होगा, L से लेस्बियन मुराद है, G से गे मुराद है। लेस्बियन से मुराद वो अजीब व गरीब किस्म की ख़वातीन हैं जो ख़वातीन ही में अननेचुरल तौर पर अट्रैक्शन महसूस करती हैं। गे से मुराद वो लोग हैं जो वो मर्द हज़रात हैं जो मर्दों में अपने वो सेटिस्फेक्शन तलाश करते हैं जो अल्लाह ताला ने औरतों में रखा है, बीवियों में रखा है। बाइसेक्सुअल से वो मुराद हैं जो दोनों जगह शहवत रानी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इन इस्तिलाहों से मेरे ख्याल में हम वाकिफ़ होंगे। फिर आती है टी की इस्तिलाह, ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह अपने आप में। ये ट्रांसजेंडर की जो इस्तिलाह है, जेंडर की बहस जब हम करेंगे अभी थोड़ी देर में तो ये ज़रा ज़्यादा क्लियर होगा। इनका ये इशू है, ये इनको इंटरसेक्स से कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले कि इंटरसेक्स हमने जो टर्म इस्तेमाल की, मुखन्नस जो टर्म इस्तेमाल की, वो नेचुरली ऐसे पैदा होते हैं कि वो जेनेटिकली एम्बिगुअस होते हैं या उनका एक कुदरती तौर पर एक मसला होता है जिसको हल करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये इनका ऐसा कोई मसला कुदरती तौर पर नहीं होता है। ये मुज़क्कर या मुअन्नस ही पैदा होते हैं। अलबत्ता इनको ऐसा लगने लगता है बाद में बड़े होने पर कि हम पैदा तो मुज़क्कर हुए हैं लेकिन हम हैं मुअन्नस। हम मेल पैदा हुए थे, हमें असाइन मेल किया गया था, लेकिन मैं हूँ तो फीमेल, या मुझे फीमेल असाइन किया गया था लेकिन मुझ में तो मेल की खुसूसियात पाई जाती हैं, तो मैं एक ऐसा मेल हूँ जो फीमेल बॉडी में ट्रैप कर दिया गया हूँ। ये जो वाहियात किस्म की सोच है, अजीब व गरीब किस्म की, ये सोच ट्रांसजेंडर कहलाती है कि आपका जेंडर तयशुदा हो, आपको कोई मसला ना हो नेचुरली, लेकिन आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ये आप ख्याल करें, ये सोचें कि मैं जो जेंडर मेरा है मैं उससे बिलोंग नहीं करता, मुझे ट्रांजिशन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है ये ट्रांसजेंडर कहलाती है और ये नेचुरल ऑकरिंग फिनोमेना नहीं है जैसा कि इंटरसेक्स है। इस पर जेंडर पर हम बहस करते हुए आएंगे इंशाल्लाह। चौथी टर्म है वो क्यू है, क्वेयर जिसको कहेंगे, या क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है, जिसमें ये है कि ये या तो जेंडर की जो बाइनरी है उसको तस्लीम नहीं करते कि औरत मर्द ही क्यों, कोई तीसरा और चौथा और पांचवा भी होना चाहिए, या हम किसी जेंडर को नहीं तस्लीम करते, या हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या हैं, और इस तरह के जो अजीब गरीब ख्यालात हैं, ये भी कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये बल्कि ये भी एक थॉट प्रोसेस का नतीजा है जिसके बाद ये इस तरह की चीज़ों पे पहुंचते हैं। इसमें आई जो आता है कहीं कुछ इस्तिलाहों में, जैसा कि मैंने कहा, वो इंटरसेक्स मुराद है, वो मसला हम डिस्कस कर चुके हैं। ए से एरोमेंटिक, असेक्सुअल, और पी से पैनसेक्सुअल या पॉलीसेक्सुअल, जो दो नहीं या बल्कि कई जेंडर्स की तरफ मुतासिर होते हैं और उससे अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को तलाश करते हैं। तो ये बहुत सारी इस्तिलाहें थी, बहुत दर्दनाक किस्म की इस्तिलाहें थी। टॉपिक ऐसा है कि बोलना पड़ रहा है, वरना ये इस्तिलाहें ही आदमी को शर्मा देंगे। खैर, तो ये इन इस्तिलाहों के हल्के फुल्के डिस्क्रिप्शन के बाद जो इशू है, कोर इशू, जहाँ से ये तमाम डिबेट पैदा होती है, वो इशू है जेंडर का इशू। और जेंडर के इशू में अभी अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में ये बात आ चुकी कि अल्लाह ताला ने इंसान को और कायनात की दीगर मखलूक़ात को, यहाँ तक कि जमादात और नबातात में भी ये चीज़ मॉडर्न रिसर्च में आइडेंटिफाई कर दी गई है कि वो मुज़क्कर और मुअन्नस और ज़ौजैन की सूरत में पैदा किया है। तो उसमें ये बात आती है कि ये बात तो तयशुदा है, ये बात बिल्कुल हकीकत के तौर पर है, लेकिन जेंडर को ये लोग कैसे देखते हैं, जो LGBTQ या इस तरह के जो रुझानात रखते हैं, वो जेंडर को कैसे समझते हैं कि इतने सारे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स में खुद भी मुब्तला हो जाते हैं और दूसरों को भी मुब्तला करते हैं। तो वो जेंडर की इस डिबेट को 3 हिस्सों में तोड़कर खुद भी कंफ्यूज होते हैं या दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसका पहला हिस्सा है जिसमें वो कोई कलाम नहीं कर सकते, जिसको उन्हें तस्लीम करना पड़ता है, और इसीलिए ये बातें बनाने की ज़रूरत पड़ती है और वो तोड़ने ताड़ने की ज़रूरत पड़ती है। वो इसीलिए है
और वो पहला हिस्सा है बायोलॉजिकल सेक्स का मामला। तो वो कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो एक बायोलॉजिकल सेक्स की एक आइडेंटिटी उसकी होती है जो उसकी शर्मगाह से, उसकी जेनिटल से डिफाइन कर दी जाती है। इसको वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेक्स असाइंड एट बर्थ, कि हम पैदाइश के एतबार से हम कौन सा जेंडर हैं, क्या क्या चीज़ हैं, मर्द हैं या औरत हैं पैदाइश के एतबार से। इसको उन्होंने इस्तेलाह इस्तेमाल की बायोलॉजिकल सेक्स की इस्तेलाह। दूसरी इस्तेलाह वो इस्तेमाल करते हैं जेंडर आइडेंटिटी की इस्तेलाह, और इसमें वो कहते हैं इसमें साइमन डी बउआ वगैरह की किताब द सेकंड सेक्स का मुताला किया जा सकता है, जिसमें वो इतनी हद तक आगे नहीं बढ़ी थी मेरे ख्याल में, लेकिन उसी आर्गुमेंट को आगे ले गया गया और ये कहा गया है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर अपने आप में बायोलॉजी से उसको अलग करके कि जेंडर सोसाइटी, समाज से पैदा होता है, समाज से बनता है, और किस तरह से हम अफराद की तरबियत करते हैं समाज में, उससे तय पाता है कि जेंडर उसका क्या होगा, कैसे होगा। चुनांचा मिसालें आती हैं उनकी तरफ से कि मैस्कुलिनिटी या मेल जेंडर की जो खसूसियात हैं हमारे समाज में वो ये है कि वो शर्ट पैंट कोट टाई पहनता है, या उसका एक मखसूस किस्म की शर्मगाह होती है, या वो फुटबॉल और आउटडोर किस्म के गेम पसंद करता है, या कलर में ब्लू पसंद करता है। फीमेल की पहचान ये है कि उसके मखसूस किस्म के ड्रेसेस होते हैं, उसको खेलने में गुड़िया वगैरह पसंद होती है, उसको पिंक कलर पसंद होता है। कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये चीज़ें सोशल कंस्ट्रक्ट हैं, लिहाजा जेंडर अपने आप में सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है, उनकी अपनी डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जब जेंडर को डिफाइन करते हैं तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी योरसेल्फ। तो ये अपने आप में सेल्फ जनरेटिंग है कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, और ये सोशल कंस्ट्रक्ट है अपने आप में, सोसाइटी में रहने के नतीजे में ये चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली अगर मर्द हों तो आप जेंडर के तौर पर भी मर्द हों, बल्कि ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजिकली आप मर्द हों और जेंडर के तौर पर आप औरत हो, या बायोलॉजिकली आप औरत हो और जेंडर के तौर पर मर्द हो। क्या क्या बोलना पड़ता है इंसान को, मतलब ये कितनी अजीब गरीब किस्म की बात है। खैर, तो ये जो बात है कि एक इंसान अगर बायोलॉजिकली भी मुज़क्कर हो और जेंडर के तौर पर भी मर्द हो तो ये कहते हैं कि वो सिस जेंडर है। और अगर वो इसमें फ़र्क पाया जाता है, बायोलॉजिकली वो मर्द है लेकिन जेंडर के तौर पर वो अपने आप को औरत देखता है, या बायोलॉजिकली वो औरत है जेंडर के तौर पर अपने आप को मर्द देखता है, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। ये उनकी अपनी खुद साख्ता कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको बस समझने के लिए यहाँ पर पेश किया गया है, वरना ये तो बस खुद साख्ता फलसफे ही हैं। तीसरी चीज़ यानी एक बायोलॉजिकल हिसाब से उन्होंने फ़र्क किया, एक जेंडर यानी सोशल हिसाब से उन्होंने फ़र्क किया, और एक तीसरा फ़र्क वो करते हैं सेक्सुअल एतबार से। और सेक्सुअल एतबार से वो कहते हैं कि आपका पैदाइशी तौर पर मर्द होना ज़रूरी नहीं है कि आप एक खातून की तरफ अट्रैक्ट हों जिनसी तौर पर या सेक्सुअल तौर पर, या आपका एक पैदाइशी तौर पर खातून होना या जेंडर के तौर पर खातून होना ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्सुअली मर्द की तरफ अट्रैक्ट हों, इसके उल्टा भी हो सकता है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस बात का नाम है कि आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इस हवाले से एक इंसान जो है वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और अगर वो औरत है तो लेस्बियन कहलाएगा, मर्द है तो ये कहलाएगा, दोनों की तरफ हो रहा है तो बायसेक्सुअल कहला रहा है, न जाने किस किस की तरफ हो रहा है तो पैनसेक्सुअल और पॉलीसेक्सुअल वगैरह कहलाएगा। और इस तरह ये सब बातें की जाती हैं, और इसरार होता है इस बात पर कि हम इन अजीब व गरीब किस्म की जो चॉइसेस हैं और जो नज़रियात हैं इसका एहतराम करें, फ़र्द का जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है और जो प्राइवेट चॉइसेस हैं इसका एहतराम करें। तो ये वो बातें हैं जो कही जाती हैं। तो उम्मीद है टर्म्स के हिसाब से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ज़रा कम हुए होंगे, कम से कम अगर ख़त्म न हुए हों तो। अब आते हैं जो रियलिटी है उसको एक बार फिर हम देख लें कि इंसान जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस होता है, मुखन्नस भी होते हैं, बड़ी लिमिटेड तादाद उनकी होती है जैसा कि हम देख चुके। उनमें से बड़ी तादाद को अगर हम फ़ुक़हा की रूलिंग्स को फॉलो करें, उस तरीके को फॉलो करें तो मेल और फीमेल में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर जेंडर को बायोलॉजी से जब अलग करके देखा जाता है तो यही अपने आप में प्रॉब्लम पैदा होता है, और ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो वहीं पर डिफाइन हो जा रही है चीज़ें, और अगर आप अलग कर तोड़ कर नहीं देखेंगे तो इंसान को अपनी मनमानी करने का मौका वहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये तोड़ने की ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन अगर ज़रा सा गौर करें हम तो देखेंगे कि अगर बायोलॉजी से इस जेंडर के डिस्कशन को हटा लिया जाए, इंसान के अपने शर्मगाह से, जेनिटेलिया से, मेल और फीमेल के जो तस्वुरात वहाँ से पैदा होते हैं जो अब तक दुनिया में रहे हैं, उनसे इसको हटा लिया जाए तो फिर मर्द और औरत का मफ़हूम क्या रह जाता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। किसी टर्म का या किसी इस्तिलाह का एक कोर मफ़हूम होता है और बहुत सारे पेरिफेरल मफ़हूम होते हैं, और वो तमाम जो पैकेज होता है वो सारी चीज़ें रियलिटी होती है अपने आप में। मिसाल के तौर पर इबादत अपने आप में एक टर्म है,
और ऐसी हज़ारों टर्म्स की एग्जांपल ली जा सकती हैं, ये जहन में आ रही तो मैंने ये ले ली। लेकिन जब आप नमाज और रोज़ा सोचेंगे तो ये बिल्कुल कोर है इबादत का। लेकिन अगर आप ऐसे वसी तसव्वुर की बात करें तो पूरी ज़िंदगी इबादत है। अगर एक आदमी ये कहे कि मैं नमाज छोड़कर सो जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मान लीजिए कि इंसान जब आराम करता है या रोज़ा रखता है और सो जाता है तो उसको नींद में भी सवाब मिलता है, ये भी उसकी इबादत शुमार होती है, तो नमाज छोड़कर सो जाता हूँ। तो यहाँ पर पता चला कि उसका इबादत का जो तसव्वुर है वो गड़बड़ाया हुआ है। वो सही चीज़ों से दलील ले रहा है लेकिन गलत नतीजे तक पहुँच रहा है। बिल्कुल उसी तरह के जेंडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सोशल कंस्ट्रक्ट हैं अपने आप में। हर इलाके में, हर ज़माने में मर्दों और औरतों के जो लिबास हैं, उनके रहने सहने का जो अंदाज है, उनके ज़िम्मे जो काम है, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी से और ज़माने से डिटरमाइन होती है। लेकिन उनकी एक बुनियादी रियलिटी ऐसे है जो पूरे हर ज़माने में, हर जोग्राफियाई खित्ते में कॉमन है और इसमें कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ है अपने आप में। तो डिस्कशन अगर हो तो वो पूरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेरिफेरल कुछ चीज़ों को ले लें और फिर जो बुनियादी और कोर चीज़ है उसको छोड़ दें। तो ये काम किया है जेंडर की डिबेट में घुसते हुए और उसको इस तरह से अलग करके उसको सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट समझ के, यहाँ तक कि बायोलॉजी के अगर वो अपोजिट भी जाए तो भी इस चीज़ को उनको तस्लीम करने में कोई आर नहीं है, क्योंकि यही से मनमानी करने का दरवाज़ा खुलता है। तो ये चीज़ है कि वो कोर में और पेरिफेरी में, एम्बेलिशमेंट में कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज दूसरों को करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्स की जो बुनियादी हकीकत है वो बायोलॉजी से शुरू होती है, लेकिन मुख्तलिफ सोशल और दीगर डायमेंशंस की तरफ भी जाती है। लेकिन वही चीज़ों को बुनियाद बनाकर इस बायोलॉजिकल कंसिडरेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी किस्म की बेवकूफ़ी और जहालत हो सकती है या शरारत हो सकती है। ये दोनों किस्म की चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी अलग किया है, वो भी अपने आप में गलत बात है, क्योंकि इसका भी कनेक्शन कोर रियलिटी से अपने आप में है। ये उसी कोर रियलिटी का एक्सटेंशन है। एक मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर जो बच्चा पैदा होता है, वो बड़े होकर समाज में मर्द या औरत के तौर पर परवान चढ़ता है, और जब बुलूगत की उसकी उम्र आती है तो उसके अंदर मर्द या औरत के तौर पर जिनसी ख्वाहिशात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अपने आप में एक कंटिन्यूम है, एक प्रोसेस है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा कर देना इंतहाई बड़ी किस्म की बेवकूफ़ी है। इन्हीं लोगों से कहा जाए कि नीम के पेड़ से आम हमने तोड़ा है तो मुखालफत करेंगे, लेकिन जब ये कहा जाता है कि बच्चा पैदा हुआ था तो वो मुज़क्कर था, लेकिन वो अपने आप को जेंडर के ऐसे हिसाब से मुअन्नस समझ रहा है, लेकिन अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन फिर मर्दों वाला रख रहा है, तो ये बात तस्लीम करने में उनको कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन नीम से आम आ सकता है, ये बात वो नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के तजादात हैं, ये भी हमारी नज़र में रहने चाहिए। बड़ा अफसोस होता है और बड़ा ताज्जुब होता है जब वो इस किस्म के अल्फाज और इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं, गे चाइल्ड, गे टीनेजर। भाई जो बच्चा बालिग ही नहीं हुआ है, उसके सिलसिले में आप कैसे ये पता करने में कामयाब हो गए कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका गड़बड़ है आपके हिसाब से तो भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जेंडर के डिस्कशन में आती हैं। तो ये जेंडर के सिलसिले में उनकी जो पोजीशन थी और उस पर जो रिस्पांस हो सकता है वो किया गया। दूसरा जो इशू इस हवाले से है, जेंडर अपने आप में एक बेसिक इशू था। दूसरा इशू होमोसेक्सुअलिटी का है, और होमोसेक्सुअलिटी के तनाजुर में बहुत सारे आर्गूमेंट किए जा सकते हैं। इसमें से पर्पसफुली मैं 2-3 आर्गूमेंट छोड़ रहा हूँ। एक मेडिकल ग्राउंड पे आर्ग्यू किया जा सकता है, जिस पर बड़ा तफसीली लिटरेचर मौजूद है, और मुमकिन हुआ तो कुछ चीज़ें तलाश करके मैं भी यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दूंगा, ये जिसमें आप देख सकते हैं कि मेडिकली क्या क्या चीज़ें नुकसानदार साबित होती हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने पर। स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, और ख़ुद जो LGBTQ कम्युनिटीज़ हैं उनके पोर्टल्स में और उनके न्यूज़पेपर्स में या उनके मैगजीन्स में ये बातें अवेलेबल हैं कि किस तरह सेक्सुअल डिजीजेस के ज़्यादा बड़े रिस्क में वो लोग मुब्तला हैं। खैर, वो इस बात को इस तरीके से पेश करते हैं कि हमें खुलकर सामने आने की इजाज़त होनी चाहिए, हमें सारी सहूलियात हासिल होनी चाहिए क्योंकि ख़तरा ज़्यादा हमें है। लेकिन ये नहीं सोचते कि ख़तरा ज़्यादा आपको क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अननेचुरल काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ उनके लिए एक बेदारी का पैगाम होना चाहिए था, उसको वो आर्गूमेंट बनाते हैं अपनी मज़लूमियत का, और ये अजीब सोच है इंसान की। तो ये आर्गूमेंट मैं छोड़ रहा हूँ मेडिकल वाला, मैं साइकोलॉजिकल आर्गूमेंट छोड़ रहा हूँ। हालांकि आप ज़रा सा तहकीक करें तो आप ये पा सकते हैं ज़रा सी रिसर्च के बाद कि डिप्रेशन का रिस्क, सुसाइड का रिस्क या इस तरह के जो तमाम रिस्क हैं वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन है। और ये बात कही जाएगी, ये बात गुमराह करने के लिए कही जाएगी कि ऐसा इसलिए होता है कि समाज इनको रिजेक्ट करता है, इनको टॉर्चर करता है। हालांकि ये बात ही मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। वैसे हम हर जुल्म के खिलाफ हैं और किसी शख्स को टॉर्चर करने का यकीनन कोई जवाब नहीं बनता है, लेकिन ये बात वहाँ पर भी हकीकत है जहाँ होमोसेक्सुअलिटी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और 1-2 साल से नहीं बल्कि दहाइयों से
सेम सेक्स मैरिजेस का रिवाज है, जैसे डेनमार्क है या नॉर्वे या इस तरह के जो इलाके हैं जो कि सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव शुमार होते हैं, वहाँ पर भी डिप्रेशन का और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नज़र आता है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो इस्लाम का पर्सपेक्टिव डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नालायकी में या जहालत में इस्लाम के जो पर्सपेक्टिव है उसको भी प्रॉब्लमेटाइज करने के पीछे पड़े हैं। हालांकि इस्लाम का जो पर्सपेक्टिव है इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, सरी है। चुनांचे कुरान में हम कौम लूत का तज़किरा सुनते हैं, अहादीस में सेम सेक्स के जो अफ़ाल हैं उसके ज़रिए जो प्लेजर हासिल करना है उस पर लानत मलामत भेजी गई है। पूरी उम्मत का आप कह सकते हैं कि इजमा है, तवातुर के साथ इस पर अमल हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं है अपने आप में, चुनांचे इसका वजूद ज़रा कम ही रहा है, लेकिन रहा है। चुनांचा फ़ुक़हा ने इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की ताज़ीरात और सज़ाएँ भी तजवीज़ की हैं। इस पर भी हम लिटरेचर का मुताला कर सकते हैं कि कोई शख्स अगर इस्लामी रियासत में इस तरह की हरकतें करता है तो उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। तो इस्लाम की अपनी जो पोजीशन है वो ये है, जैसा कि मैंने जिन आयत के साथ शुरुआत की सूरह मोमिनून की, कि कामयाबी का मुद्दा उन लोगों को सुनाया गया जो मुख्तलिफ कामों के साथ साथ नमाज में खुशू पैदा करने, ज़कात पर अमल करने और लग़वियात से परहेज़ करने के साथ साथ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और शर्मगाहों की हिफाजत करने के सिलसिले में ये नहीं कहा गया कि संन्यास ले लीजिए, बल्कि उसको एक इंसान की फितरी ख्वाहिशात को तस्लीम किया गया, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। निकाह के ज़रिए वो ख्वाहिशात पूरी करनी है, उसके अलावा ख्वाहिशात पूरी करने के जितने ज़राए हैं, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल ही सेक्स क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्री मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वो भी इस्लाम उसको जायज़ करार नहीं देता बल्कि ज़िना समझता है। तो होमोसेक्सुअल या दीगर किस्म के जो एक्ट्स हैं, घिनौने किस्म के जो एक्ट्स हैं, उनकी इस्लाम कैसे इजाज़त दे सकता है? तो बिल्कुल इस्लाम की पोजीशन इस सिलसिले में वाज़ेह है। लेकिन मौजूदा ज़माने में हर तरह का फितना है, तो ये फितना भी पैदा किया गया है। और चूँकि अहादीस ज़रा ज़्यादा डायरेक्ट हैं इस मामले में, होमोसेक्सुअलिटी को कंडेम करते हुए और इस तरह की चीज़ों में, तो फितने इनकार हदीस से भी मदद लेने की कोशिश की गई है। ये फिर एक दूसरे जुमले मोतरज़ा में हम एंटर हो रहे हैं, यानी एक दूसरी बात से जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये है कि कुरान हमारे पास सिर्फ एक किताब की सूरत में नहीं आया है, बल्कि उस कुरान को लाने वाला एक नबी था। तो नबी की जो बातें हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कुरान को समझने के लिए, कुरान की तशरीह के लिए। तो नबी की बातों को नज़रअंदाज करके सिर्फ कुरान को समझने की कोशिश करना भी अपने आप में एक गलत ख्याल है। जो मुख्तलिफ मॉडर्निटी से मुतासिर और मरूब होकर लोग जो कुरान से या इस्लाम में ऐसे नतीजे निकालना चाहते हैं जो आज ज़्यादा काबिल कबूल हो, वो पहला काम ये करते हैं कि अहादीस का इनकार करते हैं और कुरान की तरफ जाकर मन माने और मन घड़त तावीलात करना चाहते हैं। तो इस फितने से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जो लोग जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि अहादीस को रिजेक्ट कर देते हैं और कुरान की आयत की मनमानी तावीलात करना चाहते हैं। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि कुरान बिल्कुल वजाहत से, यानी अहादीस को हम छोड़ भी दें, और मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ अहादीस का यहाँ पर कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है, मैं कुरान ही का जिक्र करता हूँ कि कुरान में बिल्कुल डायरेक्टली इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। चुनांचा हम देखते हैं कि कौम लूत की जब बात की गई तो कुरान में एक जगह नहीं कई जगहों पर इस बात का जिक्र किया गया कि कौम लूत का जो बड़ा जुर्म था वो होमोसेक्सुअलिटी थी, हम जिन्स परस्ती उनका बड़ा संगीन जुर्म था। चुनांचा हम देखते हैं कि सूरह शूरा में कहा गया, अतअतूना ज़ुकराना मिनल आलमीन वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून, कि तुम जो हो वो मर्दों की तरफ जाते हो शहवत के साथ, और तुमने मतलब औरतों को जो इसके लिए डेजिग्नेट की गई हैं या तुम्हारी स्पाउसेस बनाई गई हैं उनको तुम छोड़ देते हो, और तुम जो हो वो कौमुन आदून हो, तुम हद से गुजर जाने वाले हो। ये एक जगह नहीं कई जगहों पर कहा गया। चुनांचे सूरह आराफ में भी इसी तरह की आयत है, लतातूना रिजाल शहवतम मिन दूनि निसा बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, कि तुम तो हद से गुजर जाने वाले लोग हो, क्योंकि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए लपकते हो। इसी तरह सूरह नमल में उनको कौमुन तजहलून कहा गया, इसी बात को दोहराकर कि क्या बात है कि औरतों को छोड़कर तुम मर्दों की तरफ जाते हो और तुम तो ये सख्त जहालत का काम करते हो, तुम तो बिल्कुल एक जाहिल कौम हो। तो ये इन बात इस बिल्कुल क्लियर टेस्टिमनी जो कुरान की है, उसके बावजूद अगर कोई कहता है तो कि कुरान के थ्रू या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, तो वो बिल्कुल एक बेबुनियाद बात करता है। लेकिन कुरान से हम इसकी मजीद शहादत देखते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, ऐसा अजीब व गरीब किस्म के कुछ लोग हर जगह पैदा होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उनको बोलना होता है तो बोलते हैं। तो उसमें से एक बात यह है कि कौम लूत पर जो अजाब आया या कौम लूत को जो अल्लाह ताला की फटकार पड़ी, वो हम जिनसी की वजह से नहीं थी, बल्कि हम जिनसी को तो बस ऐसे ही जिक्र कर दिया गया है, उनके असल गुनाह दूसरे थे। चुनांचा जो ऐसे ही गुनाह था उनके हिसाब से, यानी हम जिनसी, उसका जिक्र कुरान में बार बार हुआ है, और जो गुनाह उनके असल मेन गुनाह थे सो कॉल्ड इनके हिसाब से, इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, उसका जिक्र कुरान में मुझे एक जगह मिला सूरह अनकबूत में, जहाँ पर वहां पर भी उनके जराइम की फहरिस्त बयान करते हुए कौम लूत की पहले हम जिनसी का और होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र किया गया, और फिर उनके डाका डालते हैं और बेहयाई करते हैं, इस बात का जिक्र किया गया।
तो ये बिल्कुल अजीब बात नजर आती है। तीसरी बात यह है कुरानी से कि अगर हम जिनसी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं था, तो जब लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, वो उनको मेहमान समझते हैं, तो और वो उनकी जो कौम है उनसे हम जिनसी का मुतालबा करती है, तो जो लूत अलैहिस्सलाम है वो ये कहते हैं कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। इसके दो इंटरप्रिटेशन है, उनकी अपनी बेटियां भी थी और कौम की बेटियों को भी एक बुजुर्ग अपनी बेटियां कह सकता है कि ये तुम्हारे लिए ख्वाहिशात पूरी करने की ज्यादा सही जगह है कि तुम निकाह करो और यहाँ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। कौम रिजेक्ट करती है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन इससे ही पता चलता है कि हम जिनसी अपने आप में एक प्रॉब्लम था। रेप, इंसेस्ट और इस तरह की चीजें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होती तो दूसरी नसीहत होती उनको। लेकिन अगर उनको खवातीन की तरफ माइल किया जा रहा है कि यहाँ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, का मतलब है कि हम जिनसी अपने आप में, होमोसेक्सुअलिटी अपने आप में प्रॉब्लम था। तीसरी या चौथी जो भी बात है वो ये है इस हवाले से कि कहा गया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के सिलसिले में कुरान में एक से ज्यादा जगह पर, सूरह आराफ पर, सूरह अनकबूत पर और भी मुख्तलिफ मकामात पर हो सकता है जिक्र आया हो कि वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, कि तुम क्या कैसे बेहया हो गए हो कि फहाशी के वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। अब कोई सवाल पैदा हो कि भाई क्या काम वो ऐसा करते थे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया? क्या डाका दुनिया में इससे पहले नहीं पड़ता था? रहज़नी इससे पहले नहीं होती थी? बेहयाई के दीगर काम इससे पहले नहीं होते थे? तो पता चला कि उनका जो प्राइमरी मसला था वो होमोसेक्सुअलिटी ही का मसला था। इस सिलसिले में एक और बात के होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र में लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा जहाँ जहाँ मज़कूर हुआ है वहाँ कुरान में उनकी बीवी का भी जिक्र आया है, लूत अलैहिस्सलाम की। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नौज़ुबिल्लाह न तारीख से साबित है, न कुरान में जिक्र है, न हदीस में जिक्र है कि वो खुद होमोसेक्सुअलिटी के जुर्म में इंडल्ज थी, ये बात कहीं मज़कूर नहीं है। तो उनका जुर्म इतना था कि वो इस जुर्म में, इस गलत काम में ये कि लोगों को लानत मलामत नहीं करती थी या उनका साथ देती थी या जो भी कुछ इस तरह का कहा जा सकता है कि उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनके दिल में, ये खुद इस काम में मुलविस नहीं थी। इसको अलाई कहा जाता है आज की इस्तिलाह में कि ये हमारे दोस्त हैं जो स्ट्रेट भले हों या सिसजेंडर हों या नॉर्मल हों, लेकिन हमारी वकालत करते हैं। उसके बावजूद जहाँ कुरान में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है वहाँ ये बात कहा गया है कि उनकी बीवी को रोक दिया गया क्योंकि वो उन्हीं में शामिल थी, उस पर अज़ाब नाज़िल हुआ और उनकी बीवी को एक बुरे एग्जाम्पल के तौर पर कुरान में पेश किया गया। चुनांचे सूरह आराफ में, सूरह हिज्र में, सूरह शोरा में, सूरह नमल में, सूरह मुमतहिना में, सूरह तहरीम में ये जिक्र जो है वो बार बार आया है। तो ये होमोसेक्सुअलिटी के ताल्लुक से कुछ बात की। रही बात बायसेक्सुअलिटी, यानी दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, शहवत करना, या पैंसेक्सुअलिटी के किसी को ना छोड़ना, तीसरे को भी ना छोड़ना, या और भी कुछ हो सकता है तो उनकी तरफ जाना, ये तो बिल्कुल मतलब एक अजीब बात है। जिनसी ख्वाहिशात फितरी हैं यकीनन, लेकिन इस्लाम ने उसकी हद मुकर्रर की है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा सूरह मोमिनून की रोशनी में, कि वो हद ये है कि आप निकाह के बाहर इस काम को नहीं कर सकते और निकाह के अपने उसूल हैं। तो निकाह के बाहर हेटेरोसेक्सुअल रिलेशंस भी अलाउ नहीं है, तो होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। निकाह के अलावा और मिल्के यमीन के अलावा जो हर तरीका है वो बातिल है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, वो हद से गुजर जाने वाले लोग हैं जो किसी भी और तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर की अपनी जो डिबेट है वो अजीब गरीब किस्म की डिबेट है, और वो हमने ये देखा कि जो लोग बायोलॉजिकल सेक्स जिनका और जिनका जेंडर ओरिएंटेशन मैच करता है तो उसको सिस जेंडर कहते हैं, जिनका मैच नहीं करता उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, और इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि द जेंडर आई एम असाइन्ड एट बर्थ मिसमैचेस द वन आई रियली एम, कि मैं पैदा तो भाई लड़के के तौर पर हुआ था लेकिन मैं हूँ लड़की। अब ये हूँ लड़की वाली बात कैसे पता चली उनको, ये जो है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो जो डेफिनेशन वो बताते हैं, जो बात वो कहते हैं, वो इस तरह की बातें कहते हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं थे अपनी बॉडी के साथ, अपने जेनिटल्स के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, या हम कंफर्टेबल तो हैं अपनी बॉडी के साथ लेकिन अपने जो जेंडर के दूसरे एस्पेक्ट हैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या हमें जब मर्द के तौर पर या औरत के तौर पर ट्रीट किया जाता है तो हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल दूसरा जेंडर बनकर या दूसरे जेंडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर खुश होते हैं या वो हमें अच्छा लगता है, और इस तरह हमें हमारी चॉइस जो है उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। ये बात आ चुकी है इससे पहले, लेकिन बात बुनियादी जो है वो ये है कि खाम ख्यालियों से हकीकत नहीं बदला करती। तो जिनसी शनाख्त की बुनियाद में अगर बायोलॉजी है और अल्फाज के अपने माने होते हैं तो इस बात का कोई माने नहीं है कि एक इंसान जो है वो मर्द पैदा हो और वो बाद में औरत बन जाए अपने आप में, या औरत पैदा हो, मुअन्नस पैदा हो और बाद में वो मर्द बन जाए। तो मतलब लॉजिक के जब सवालात हों तो इस तरह के नेट के जब एग्जाम कोई देता है तो इस तरह के सवालात आते हैं कि बिल्ली को कुत्ता, कुत्ते को गधा, गधे को उल्लू, उल्लू को शेर और शेर को गीदड़, तो सबसे बहादुर कौन? तो जवाब होगा कि गीदड़ सबसे बहादुर है। लेकिन
दुनिया में असल हकीकत ऐसी नहीं होती है, क्योंकि हर लफ्ज़ का अपना माने होता है। तो मर्द का अपना माने है, औरत का अपना माने है, मुज़क्कर का अपना माने है, मुअन्नस का अपना माने है। ये तमाम चीज़ों के अपने माने और मफ़हूम आते हैं। क्या हम इस बात को गवारा करेंगे कि कोई इंसान कहे कि मुझे बचपन से इंजीनियर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन इत्तेफाक से मैं इंजीनियरों के घर पैदा हो गया, अब्बा ने ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करा दी और अब मैं डॉक्टर बनने की एक्टिंग करता हूँ, कोट पहनकर डॉक्टरों का जो वो होता है सफ़ेद रंग का कोट और स्टेथोस्कोप लगा के और लोगों का इलाज करता फिरता हूँ, मुझे ट्रांस डॉक्टर कहो और मेरी जो चॉइस है उसका रिस्पेक्ट करो, तो कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस बात को तस्लीम करने के लिए वो जिन इंतहाओं तक जाते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। तो हार्मोन थेरेपी, चेस्ट और बॉटम सर्जरी और फेशियल फेमिनाइजेशन, मैन स्कल्पटिंग और न जाने क्या क्या वो काम करते हैं जिससे अपने जिस्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ये बात जब इस इस्लाह की जो बात थी कि एक इंसान अपने सोचने के तरीके को दुरुस्त कर ले, बाकी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन ये कि इंसान अपने सोचने के तरीके को तो दुरुस्त ना करे, उस गलत रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाए, लेकिन पूरी दुनिया की सारी जो हकीकतें हैं उसको बदलने की कोशिश करे, अपने जिस्म को बदलने की कोशिश करे और वो तमाम इंतहाओं पर चला जाए, ये कौन सी अक्लमंदी है, ये हमें नहीं मालूम। जितनी बड़ी हो उतना बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। इसको ग़िज़ा फराहम करना, इसको सपोर्ट करना, ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अपने आप में। तो ये बहुत से प्रैक्टिकल मसाइल इससे जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका वगैरह में बाथरूम डिबेट चल रही है कि जो औरतों और मर्दों के अलग-अलग बाथरूम होते हैं, तो जो ट्रांसजेंडर हैं या ट्रांस वुमेन है, यानी मर्द जो अपने आप को औरत समझ रहा है, औरत के कपड़े पहन रहा है, वो औरतों के बाथरूम में जाना चाहता है, इसके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है और पूरी उम्मीद है कि वो इन लड़ाइयों में कामयाब भी हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इश्यूज़ बनकर भी हमारे सामने आते हैं। वक़्त ज़्यादा हो रहा है और हम यहाँ पर अपनी गुफ्तगू के जो तीसरा और मेन हिस्सा है उसको ख़त्म करते हैं और जो कंक्लूडिंग पार्ट है उस पर आते हैं। कंक्लूडिंग मुझे सिर्फ 4 बातें आपसे अर्ज़ करनी है। कंक्लूजन में इस चौथे हिस्से में 4 बातें। पहली, और इनमें से बहुत सारी बातें हम सुनते होंगे, लेकिन उस बातों को इस मीनिंग के साथ हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहली बात ये, अल्लाह मेक्स नो मिस्टेक्स। ये बात कही जाती है इस तनाजुर में और लोग ये कहते हैं कि हमें जैसा बनाया गया, नेचुरली हम जैसे हैं वैसे ही हम हैं। लेकिन बात यह है कि इस बात के डीपर मीनिंग को हमें समझना चाहिए। अगर किसी को जिस्मानी उज़्र लाहक हो, हाथ पैर या किसी और चीज़ की डिफॉर्मिटी के साथ वो पैदा हो, तो इस बात को भी हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश तसव्वुर करते हैं। एक इंसान अमीर, एक इंसान गरीब पैदा हो, ये बात भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो किसी इंसान का मुज़क्कर पैदा होना, वो भी एक इंसान की एक अलग तरह की आजमाइश है। किसी इंसान का मुअन्नस पैदा होना, ये एक अलग तरह की आजमाइश है और किसी इंसान का मुखन्नस पैदा होना, वो भी उस इंसान की एक अलग तरह की आजमाइश है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कोई मिस्टेक की जा रही है। तो यस, ये बात सही है कि अल्लाह मेक्स नो मिस्टेक, लेकिन ये मिस्टेक नहीं है अपने आप में, बल्कि ये अल्लाह ताला का प्लान है, अल्लाह ताला की मसलहत है। इसी तरह ये बात कही जाती है, गॉड लव्स मी जस्ट एज आई एम, कि मैं जैसा हूँ खुदा मुझसे प्यार करता है। तो मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो भी प्यार करता है, मैं होमोसेक्सुअल हूँ, लेस्बियन हूँ तो भी प्यार करता है। ये बात बिल्कुल अजीब है, बहुत अजीब है। एक इंसान डाकू है, क्या वो भी ये कह सकता है? चोर है, क्या वो भी ये कह सकता है? रेपिस्ट है, क्या वो भी ये कह सकता है? मुशरिक है, क्या वो भी ये कह सकता है? तो खुदा की रज़ा हासिल करनी पड़ती है खुदा की हिदायत पर चलकर, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी का ताबे बनाकर। ये नहीं कि इंसान अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात पर अमल करे और कहे कि गॉड लव्स मी और अल्लाह मेक्स नो मिस्टेक। ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो मुज़क्कर, मुअन्नस, मुखन्नस, अमीर, गरीब, ज़हीन, बेवकूफ़, सेहतमंद, बीमार, माज़ूर, कुछ भी होना इसमें से इंसान की अपनी आजमाइश है और जो रोल, जो हिदायतें उस सिचुएशन में इंसान के लिए एप्लीकेबल हैं इस्लाम के मुताबिक, इंसान को उस पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसका मुक़द्दर होगी। तो ये जो आर्गुमेंट है कि अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा नहीं होता, ये मुश्रिकीन भी करते हैं। सूरह अनाम में इसका जिक्र आया है कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ़ाना आर्गुमेंट को न अल्लाह ताला ने कबूल किया, न मुसलमान कबूल करते हैं कि इंसान को फ्रीडम मिली है। इंसान चाहे तो हिदायत के रास्ते पर चल सकता है, चाहे तो अपनी गलत ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है, चाहे तो अब उस बिगाड़ में आगे बढ़ता जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट था, अल्लाह मेक्स नो मिस्टेक। यकीनन ये बात सही है, लेकिन किस तरह से सही है वो हमने देखी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, नो मीन्स नो। तो इसमें ये बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस्लाम जब कह रहा है, कुरान और हदीस कह रहे हैं कि हम जिनसी की और इस तरह के जो अजीब व गरीब सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं और जेंडर की जो खामखा की बहसें, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, तो खामखा क्यों इस्लाम पर उसको थोपा जा रहा है? नो मीन्स नो। तो इस्लाम पर ये चीज़ें ना ला दी जाएँ। आपको अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करनी है तो कहिए हम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। आप कहिए इस्लाम पुराना है, इस्लाम को हम नहीं मानते, इस्लाम गलत है, अल्लाह और उसके रसूल जो बातें बताई हैं वो मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से, और अलग हो जाइए यहाँ से। लेकिन आप अपने ख्यालात, अपने अवहाम और खुराफात को इस्लाम के नाम से पेश करें, ये बददयांती भी है। अननेचुरल काम तो आप वैसे ही कर रहे हैं, एक इल्मी खयानत के मुर्तकिब भी हो रहा है।
ये बात भी सही है, कही जाती है कि इस्लाम इज नॉट अ मोनोलिथ। तो जो लोग कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में नहीं है, तो कहा जाता है कि ये तो आपका अपना नजरिया है, लेकिन हम अपने तरीके से जब देखते हैं तो ये उसमें मौजूद होता है। ये बात भी गलत है कि जो है कि आम की हजारों अकसाम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज बुनियादी तौर पर जरूर होती है कि आम आम होता है। तो बुनियादी बातों में तब्दीलियां नहीं होती हैं, फुरुआत में तब्दीलियां हो सकती हैं, उसूल में तब्दीलियां नहीं होती हैं। तो शरीयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अकायद और बुनियादें एक होती हैं। तो जो गुनाह के काम बता दिए गए हैं वो तमाम शरीयतों में इसी तरह गुनाह के काम रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो चीज़ गुनाह थी वो आज सही हो जाएगी, सवाब का काम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो नो मीन्स नो, इस्लाम पर ये काम मत थोपिए, ये बात मत थोपिए। आपको जो अमल करना है, आपको अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, आप इंडिविजुअली अल्लाह के पास रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन दूसरों को इस्लाम का नाम लेके गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये कि LGBTQ+ और जो भी इस्तिलाहें हैं, ये अपने आप में एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी जो प्रॉब्लम था हमने शुरुआत में ही देख लिया इंटरसेक्स का, वो बहुत ही माइन्यूस्कूल प्रॉब्लम है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है आदात के हिसाब से, जो नेचुरल अकरिंग है। लेकिन उसके बाद जो कुछ है, जो अपने आप को ये समझ रहा है लड़की होकर के मैं लड़की से अट्रैक्ट हो रही हूँ, जो लड़का होकर समझ रहा है कि मैं लड़के से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या जो समझ रहा है कि मैं मर्द की बॉडी में एक औरत फंसा हुआ हूँ या औरत की बॉडी में मर्द फंसा हुआ हूँ, ये तमाम चीज़ें जहन की खाम ख्याली है, जहन की अय्याशी है, जहन की परेशानी है, नफ्सियाती अवारिज हैं, या जो भी कुछ है, ये देख लीजिए, इनका फितरत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका जो ताल्लुक है वो अहाम वसाविस की परवरिश का नतीजा है। इसके बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल फैक्टर्स क्या हैं? बेहयाई और उर्यानियत उरूज पर है, लोग बालिग हो जा रहे हैं जल्दी, शादियों में की जा रही है देर, शादियों में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, तरह तरह के सेक्सुअल स्ट्रेस हैं। तो अब इनको सेक्सुअल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको अननेचुरल डिजायर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। दुनिया में मादियत की तरफ इतना गलबा हो रहा है कि रूहानी खला पैदा हो जा रहा है। तो फैशन के तौर पर कुछ नया करना लोगों को अच्छा मालूम हो रहा है, बगावत करना अच्छा मालूम हो रहा है। तो इस तरह के ओरिएंटेशंस को कबूल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जानवर भी ऐसा करते हैं, कहा जा रहा है कि तारीख के दौर में हर तरफ से ऐसे लोग रहे हैं। तो जानवर बहुत कुछ करते हैं, और तारीख में हर दौर में चोर, डाकू, रेपिस्ट और न जाने कैसे कैसे लोग पाए गए हैं। ये अपने आप में कोई दलील नहीं बनती है। तो LGBTQ या इस तरह के जो अजीब गरीब रुझानात हैं, अननेचुरल रुझानात, वो अपने आप में सोशल कंस्ट्रक्ट है, और इनका जो हल है वो हमें तलाश करना चाहिए। इनको इंकरेज करना अपने आप में हल नहीं है। चौथी बात और आखिरी कंक्लूजन का जो पॉइंट है वो ये है कि फ्रीडम कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। ये बात इतनी वाज़ेह है कि इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जब फ्रीडम ही का नाम लेके अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं तो ये बात बयान करनी पड़ती है कि फ्रीडम अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। वरना इंसान की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि न जाने कैसी कैसी ख्वाहिशें उसके जहन में आती हैं। वो हर इंसान अपना जायजा ले ले कि आपके जहन में एक दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कैसी कैसी ख्वाहिशात पैदा हुई, उनमें से हर एक ख्वाहिश को आपको पूरा करने की इजाजत दे दी जाए तो दुनिया में क्या नतीजा उसका बरामद होगा। 3 मिसालें बस अर्ज हैं कि एक चीज कहलाती है क्लेप्टोमैनिया। इसमें इंसान को नेचुरल, सो कॉल्ड नेचुरल ख्वाहिशात होती है कि वो चुराता रहे चीजों को, जो चीज उसकी नहीं है वो चुरा ले, जहां से मिले चुरा ले, कोई अच्छी चीज दिखी उसको चुरा ले। तो ये जो चीज है इसको क्लेप्टोमैनिया कहा गया, इसको साइकोलॉजिकल बीमारी कहा गया, इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया। ये नहीं कहा गया कि नेचुरल इस आदमी के जहन में है, ये बेचारा चोर पैदा हुआ था और इसको शरीफ आदमी बनने के लिए कहा जा रहा है, तो चोर की बॉडी को शरीफ आदमी में ट्रैप करके रखा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, उसको चोरी का हक होना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। तो इसी तरह एक पैरोमैनिया है, एक इंसान है जिसको आग लगाने की ख्वाहिश है। अब बेचारा नेचुरली तौर पर उसको ख्वाहिश हो रही है कि मैं आग लगाता जाऊं हर तरफ, लेकिन ये कि उसको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, उसको नुकसानात बताए जा रहे हैं। तो यही मामला इस मामले में क्यों नहीं किया जा रहा है? कोई कह सकता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो मिसालें आप दे रहे हैं ये दूसरों पर अप्लाई होती हैं, और ट्रांसजेंडर होना, होमोसेक्सुअल होना, ये खुद अपने पर अप्लाई होता है, तो आप यहाँ पर क्यों अपनी मर्जी थोपते हैं? तो अपने ऊपर अप्लाई होने वाली चीजों में भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती है। एक इंसान सोसाइटल थॉट रखता है, क्या उसको आप अपनी बात पर अमल पैरा कहते हैं कि सुसाइड अपने आप में वाहिद इंडिविजुअल एक्ट है, अपने आप में मोस्ट इंडिविजुअल एक्ट है। इसी तरह कुछ डिजीजेस ऐसी होती है, मिसाल के तौर पर एक डिजीज है बॉडी इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान अपने आज़ा को पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है कि ये हाथ जो है ये मेरा नहीं है, इसको काट के फेंक दो। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे कि तुम्हारी बॉडी गलत है, तुम्हारी सर्जरी करा देते हैं, हाथ हटा देते हैं, तो ये कहेंगे या उसको समझाएंगे कि नहीं ये तुम्हारा ही हाथ है, तुमको गलतफहमी हो गई है, वसवसा आ गया है, तुम दिमागी खलल और नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला हो गए हो, कि ये कहा जाएगा। ऐसे लोग मजेदार तौर पर, लतीफे के तौर पर अपने आप को ट्रांस एबल्ड भी कहने लगे हैं। खैर, तो इंसान की फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है। इंसान अगर गलत ख्वाहिशात का शिकार है
تو उसको अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना चाहिए. कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उसको प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए कि इन ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाए. और दूसरों की, नॉर्मल इंसानों की जिम्मेदारी है कि वो इंसानों को गुमराह होने से बचाएं और उनकी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में, गलत ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में उनकी मदद करें और ख्वाहिशात को पूरा करने के जायज़ रास्तों को उनके लिए आसान बनाएं. तो गुफ्तगू लंबी हो गई. अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, ये दुआ जो हमारे असलाफ ने हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, कि अल्लाह हमें चीज़ों को वैसा ही दिखा जैसी कि वो हैं. हमारी फ़िक्र को इस्लामी फ़िक्र बना, हमारी नज़र को इस्लामी नज़र बना. दुनिया के फ़ैशन से, दुनिया के रसूम व रवाज से, दुनिया के चलन से हम मरूब न हो और उसी शाहराह पर चलें जिसे सिरात मुस्तकीम होने का एजाज़ हासिल है, ताकि दो जहानों में कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन सके. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Jazakallah khair, brother Khan Yasir. This was such an enlightening talk, and I'm sure a lot of our doubts have been cleared. It has indeed brought a good amount of clarity over this controversial topic. So now we will be having a short Q&A session. So if any of you have doubts, you can please type them out in the chat box. And for those of you who are feeling very lazy to type them out, you can uh, unmute yourselves. You can raise your hand and then we'll ask you to unmute yourself. Assalamu alaikum, brother. So my doubt is, you told the difference between intersex and transgender, right? But then I have come across a lot of people in the name of transgender, like, you know, when I commute through trains or like near my house, I've seen a lot of people, they call themselves transgender, they look like women, they dress like women, but the voice is like a man's voice. So I guess I still didn't clearly understand the difference between the intersex and transgender. Hope you can give a bit more explanation on that. जी, मैं ये कहूँगा कि टर्म्स में हम ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्स के सिलसिले में हम भी कभी कंफ्यूज होते हैं. जैसा कि आपने कहा, मैंने कुछ बात बताई, और टर्म्स के सिलसिले में बहुत से वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं जो यूज़ करते हैं टर्म्स को. तो मैंने यहाँ पर मतलब लिंग्विस्टिक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को वाज़ेह करने की कोशिश की. यानी मैं खुद उनकी वेबसाइट्स पे गया और वहाँ पर चीज़ें देखी, उनकी डेफिनेशंस देखी और जो बात आपको बताई वो बताई है. लेकिन आप जो बात बता रही हैं उससे भी सिर्फ ये पता चलता है कि टर्म्स के सिलसिले में कोई कन्फ्यूजन है, उससे मसले की सीवियरिटी नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनकी तादाद, जो इंटरसेक्स में कहूँगा जिनको, जो अपने आप को ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं हो सकता, उनकी तादाद उतनी ही है जितना कि बताई गई. तो अगर उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की कोई हिदायत नहीं आई है, तो उनके लिए भी चीज़ें वाज़ेह हैं और वो चाहें तो उस पर अमल कर सकते हैं. और बहुत सारी क्लैरिटी उनको नहीं है. हो सकता है ऐसा हो कि अगर वो चाहें तो अपने आप को वो जो क्लासिफिकेशन है जिसकी तरफ इशारा किया गया बिल्कुल शुरुआत में, उस क्लासिफिकेशन के थ्रू वो मर्द या औरत, मुज़क्कर या मुअन्नस में क्लासिफाई हो सकते हो. ये शऊर नहीं होता आमतौर पर लोगों को, या इस्लामी गाइडलाइंस उतनी क्लियर नहीं होती, या इस्लाम पर अमल करने वाले उतने नहीं होते, या जानने वाले नहीं होते, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और बड़ा प्रॉब्लम बनकर सामने आती है. तो टर्मिनोलॉजिकल कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो बात बताई गई वो इससे बताई गई कि हमारी मेंटल स्टेट क्लियर हो और हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो. टर्म्स के सिलसिले में जितना भी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाए, जो रियलिटी एग्जैक्टली है वो इतनी ही है कि नेचुरली तौर पर जो लोग परेशान हैं या जिनका मसला है जिसको हल करने की वाकई ज़रूरत है, उनकी तादाद बहुत कम है. और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और खुसूसन मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल हु आर रनिंग द मूवमेंट, वो लोग जो हैं वो अपने आप में साइकोलॉजिकल रीजंस की बिना पर या पॉलिटिकल रीजंस की बिना पर इस तरह के काम करते हैं. नेचुरल जो एक्सक्यूज है लोगों के पास, वो उनकी तादाद बहुत कम है और उनके मसाइल को जो हमारे फुक़हा ने तरीक़ेकार बताया उसके थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. इसी बात पर फोकस है. टर्म्स के सिलसिले में बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिल जाएंगी. Okay, our moderator for the Q&A session will be Mariam, Sister Mariam. So over to you, Sister Mariam. तो एक क्वेश्चन ये आया है कि is it a sin to let the eunuchs live amongst us in our society? Is it safe आप पूछ रही हैं. असल में मसला ये है कि वो Is it a sin? गुनाह है क्या? अच्छा. देखिए, मैंने ये बात कही कि वो एक नेचुरल, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ इंटरसेक्स की बात हो रही है, यूनस का जब जिक्र आ रहा है, तो एक नेचुरल फिनोमेना है.
और जब वो खुनसा मुश्किल की शक्ल में हो, यानी मुखन्नसी हो, क्लासीफाई ना किया जा रहा हो, किसी का हुक्म मेल या फीमेल का हुक्म उन पर ना लगाया जा सकता हो, तो ये तमाम बातें इन तमाम बातों को समझने के बाद ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए उनको जो गाइडलाइंस दी गई हैं अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। यानी उस गाइडलाइन में मैंने कहा कि बात शामिल है कि वो खिलवत इख्तियार नहीं करेंगे, तन्हाई इख्तियार नहीं करेंगे, या ना ही किसी मर्द के साथ, ना ही किसी औरत के साथ। वो अकेले ट्रैवल नहीं करेंगे। अकेले ट्रैवल करने में बहुत सारे मसले हो सकते हैं। आजकल जो अब्यूज़ और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये भी सेफ नहीं है अपने आप में, ये बात भी अपनी जगह ठीक है। तो ये भी गाइडलाइन दी गई है कि बगैर महरम के आपको सफ़र नहीं करना है। और इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है अपने आप में। तो इनके लिए भी जो महरम और नामहरम वाली बात है वो भी अप्लाई होगी। यानी अगर ये किसी खानदान में है, भाई बहन और इस तरह के तौर पर, तो ये भी उसी तरह की नेचुरल इनकी ज़िंदगी होगी। यानी इनको ऑस्ट्रेसाइज करना ये इस्लाम के पेश नज़र नहीं रहा है। इनके ज़रिए जो फितना पैदा हो सकता है उस फितने को रोकना बस इस्लाम ने इसको ख्याल किया है। तो इनको लानत मलामत करना, इनका जिनसी इस्तेहसाल करना, इनका हंसी मजाक में लेना, इनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना या फिजिकल टॉर्चर करना, इन तमाम चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ज़रा सा हम अपनी फिज़ी लिटरेचर को तफसील में जाके पढ़े तो हम देख लेंगे कि ये जो मसला है अपने आप में इतना सीवियर नहीं है जितना सीवियर इसको बना दिया गया है दूसरे प्रॉब्लम इसमें ऐड करके। ये नेचुरल ये प्रॉब्लम है इनको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अपने आप में कोई मसला नहीं है अगर ये दीन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और दीन सबके लिए है, अल्लाह ताला का दीन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर ये दीन के अहकामात जो इनके लिए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं और कोई सिन नहीं है ये इनका रहना और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इंसानी समाज में अपना रोल अदा करना। जी, जज़ाकल्लाह खैर। What about those people who change their gender by surgery and claim they are living happily? देखिए, इंसान हैप्पीनेस के बारे में कई मर्तबा झूठ भी बोलता है और कई मर्तबा गलतफहमी का शिकार भी हो जाता है। तो इंसान के अपने क्लेम्स की उतनी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई डाका डालने के बाद खुश हो जाता है तो ऐसी खुशी का क्या एतबार है। तो गलत काम करने के बाद भी खुश अगर इंसान हो जाए तो उस खुशी का एतबार नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्वेज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे ये पता चलता है कि बड़ी तलव्वुन मिजाजी होती है इन पर्सनैलिटीज़ में, और जो खुशी जिसको दायमी खुशी कहते हैं या परमानेंट खुशी कहते हैं वो हासिल नहीं होती इन चीज़ों के ज़रिए। लेकिन अगर हो भी जाए तो भी इन इक़दामात का जवाब फराहम नहीं हो सकता। दूसरी बात, खुद मैं जो मतलब आज के टॉपिक ही के लिए कुछ चीज़ें देख रहा था कि इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुख्तलिफ हवालों से। तो ट्रांसजेंडर्स को ही सुना जब मैंने, तो उनमें से भी लोगों ने कहा कि कोई मैजिकल सर्जरी नहीं है जिससे आपका जेंडर बिल्कुल चेंज हो जाए। यानी बायोलॉजी से जो ये जंग लड़ते हैं उस जंग में बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलती इनको। यहाँ तक कि जो लोग अपनी शर्मगाहों को भी चेंज करा लेते हैं ऑपरेशन वगैरह के जरिए, वो भी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में ज़िंदगी भर मुब्तला रहते हैं। तो हकीकत से फ़रार का रास्ता इंसान जब भी इख्तियार करेगा वो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला होगा। और इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो बिल्कुल अमली शहादत है इस बात की कि इंसान को कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हकीकत उसको समझ में आ जाए, बजाय इसके कि वो दुनियाई हकीकत को अपने सोच के हिसाब से, अपनी गलतफहमी के हिसाब से बदलने की कोशिश करे। जी, इसी के ताल्लुक से एक और क्वेश्चन ये है कि प्लीज गिव द आर्ग्यूमेंट ऑफ हार्म प्रिंसिपल। अगर हम किसी को कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो वी कैन फॉलो एनीथिंग एज फार एज वी डोंट हार्म अदर्स, तो इसका क्या जवाब हो सकता है? आपने ऑलरेडी मेंशन किया बट थोड़ा सा और बता दीजिए। जी, इसमें दो बातें अर्ज करनी है। एक तो ये कि हार्म नहीं पहुंच रहा है, ये बात गलत है, क्योंकि सोसाइटी में जब कोई चीज़ मूवमेंट बनती है और सामने आती है तो दूसरों को मुतासिर करती है, और ये बड़े पैमाने पर नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, टीनेजर्स को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त नहीं था, वरना मेरे पास नोट्स हैं इस बात के कि किस तरीके से एक फ़र्द जो है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो कौन था जेंडर के हिसाब से, वो बहुत सारे मसले हैं आप समझ रही होंगी, लेकिन ये कि उसका एजेंडा था बाकायदा कि नौजवानों में और टीनेजर्स में किस तरीके से इस चीज़ को फ्लोट किया जाए कि अगर वो अपने जेंडर्स के ताल्लुक से कुछ कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं तो उनको ये बताया जाए कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपकी रियलिटी है। और इस काम को करने के लिए कैसे सॉन्ग्स लिखे जाएं, कैसे ड्रामे बनाए जाएं, और कैसे इस बात को कन्वे किया जाए, और कैसे उनके पेरेंट्स को समझाया जाए, और इस तरह की पूरे एक इनिशिएटिव की पूरी एक मूवमेंट चली हुई है। वो उस एक फर्द का जिक्र है, ऐसे हज़ारों लोग फैले हुए हैं। तो ये हार्म कर रहा है सोसाइटी को। तो ये आर्गुमेंट अपने आप में गलत है कि वो हार्म नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेटली कुछ काम कर रहे हैं। तो प्राइवेटली कुछ काम अगर उनको करना होता तो वो करते रहते अपना प्राइवेटली वो काम। इंसानी तारीख में तादाद भले कम होगी, लेकिन ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने प्राइवेटली इस काम को किया होगा। लेकिन जब ये चीज़ पब्लिक में फितना बनती है तब इसका सद्दवाब ज़रूरी है, ऐसे लोगों का इलाज ज़रूरी है, काउंसलिंग ज़रूरी है, और इनकी मूवमेंट से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके तासुर को ख़त्म करना और उन तक हकीकत को पहुँचाना ज़रूरी है।
तो ये बात दो तरफ से गलत है। एक ये कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये बात गलत है, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, एक फर्द को खुद को नुकसान पहुंचाने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये बात अगर पता चलेगी तो कोशिश की जाएगी कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगी तो वो अपने आप को पहुंचाता रहे। हम क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? कोई इंसान अगर बगैर किसी को बताए अकेले में खुदकुशी कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन अगर हमें पता चले तो हम कोशिश करेंगे कि वो ना करे, उसको बचा ले हम। तो इसी तरह इंसान अगर इस बुराई में अकेले इंडिविजुअली मुब्तला हो जाए तो शायद किसी को कोई खबर ना हो और कोई इक़दाम ना हो, लेकिन अगर पता चले तो इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि उसको इस चीज़ से महफूज रखा जा सके, उसको काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए। और अगर ये पब्लिक में फितना बनकर आ गया है तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उससे उनको भी बचाया जाए और दूसरों को भी जो मुतासिर हो सकते हैं इससे बचाने की कोशिश की जाए। जी जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक अभी भी ये जो द डिफरेंस बिटवीन क्वियर एंड जो आपने बताया मुखन्नस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। सिस्टर इज आस्किंग कि जो गर्ल्स का जीन होता है वो XX होता है एंड बॉयज़ के XY होते हैं। तो हाउ इज इट राइट टू से दैट वो बेबुनियाद दावा कर रहे हैं कि मैं लड़का पैदा हुआ और लड़की जैसी आई फील लाइक आई एम अ गर्ल? वो बेबुनियाद दावा इसलिए है कि उनके क्रोमोसोम्स में कोई गड़बड़ नहीं है जो ये दावा कर रहे हैं। अगर कोई क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे दावा करे तो उसका दावा सही होगा, यानी तब वो उसका जेंडर असाइनमेंट ही गलत है उस वक्त जो बर्थ के तौर पर हुआ है। देखिए ये टर्मिनोलॉजी के कन्फ्यूजन्स में मैं चाह रहा हूँ कि न पढ़ा जाए। जो हकीकत है उसको आप किसी भी टर्म में समझ लें, वो हकीकत हकीकत रहेगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप पानी को शराब कह लें या शराब को पानी कह लें, लेकिन आप शराब न पिएं और पानी ही पिएं तो ठीक है, चाहे आप पानी को शराब कहते रहें या शराब को पानी कहते रहें, तो हकीकत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप टर्म्स कोई भी इस्तेमाल कर लें। हकीकत यह है कि इंसान या तो मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा होते हैं, बहुत थोड़ी तादाद ऐसी होती है 0.018% जो मुखन्नस होती है। इसको आप इंटरसेक्स कह लें, ट्रांसजेंडर कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसको इंटरसेक्स कहा है। और ट्रांसजेंडर जो समझा है और जो देखा है, जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो ये हैं, जो मर्द होते हैं लेकिन औरत बनते हैं, या औरत होते हैं और मर्द बनते हैं। बायोलॉजी की बुनियाद पर मतलब एक चीज़ होते हैं और दूसरे तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। उनको क्रोमोसोम्स का कोई मसला नहीं होता। क्रोमोसोम्स का जो मसला होता है वो मसला इंटरसेक्स को, मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो मैंने यहाँ पेश की, उनको होता है। उनकी तादाद बहुत कम है, उनके सिलसिले में मैंने ये बात नहीं की। मैंने ट्रांसजेंडर्स के सिलसिले में बात की, जिनको क्रोमोसोम्स के सिलसिले में, अपने जेंडर के सिलसिले में, बायोलॉजिकल सेक्स के सिलसिले में कोई शक नहीं होता। वो मर्द ही होते हैं या औरत ही होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तौर पर अपने आप को पेश करना चाहते हैं। उनका जो ये दावा है वो बेबुनियाद है। तो मैंने इस बात को शुरू में ही एक्नॉलेज कर लिया था कि ये मसला जो है नेचुरली ये 0.018% लोगों का है। उनमें से भी 80-90% लोगों का नहीं होगा। अगर फुक़हा की गाइडलाइन पर अमल कर लिया जाए तो बहुत थोड़ी तादाद ऐसी बचेगी। आज जो ये इतना बड़ा मसला है वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है, जिसके पीछे सोशल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं, नेचुरल कॉजेस नहीं है। ये बात मैं कहना चाह रहा था। सिस्टर अज़मा खान, आई एम अनम्यूटिंग। Actually my question is अस्सलाम वालेकुम। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारे बच्चे मतलब घर में हर कोई यूज़ कर रहा है, तो उनको इस तरफ अगर वो वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह के हम ट्रांजिशन वीडियोस देखते हैं, उसमें लोग लड़की बन जाते हैं लड़के, तो उनको हम कैसे एक अच्छा जवाब दे सके बच्चों को कि देखो ये चीज़ गलत है। उनको किस तरह से हम अवेयरनेस, या नॉर्मली लोगों में भी कैसे अवेयरनेस को रेस करें कि ये चीज़ गलत है, जो जो गलत तरीके से अपने आप को बनाते हैं उनके बारे में। जी जी बिल्कुल। चीज़ें देखिए, हक़ बहुत वाज़ेह और साफ़ होता है, और उसको उसी सफाई के साथ अगर पेश किया जाए और उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया जाए तो वो असर रखता है अपना। लेकिन अगर आप हक़ को बहुत दबे अल्फाज में लजाते शर्माते हुए, लोगों से मरूफ होते हुए पेश करेंगे या नहीं पेश करेंगे, तो मसले फिर समाज में पैदा होंगे और लोग मुतासिर होंगे। तो ये झूठ को चलाने के लिए बहुत से नकली टांगों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह की नकली टांगें ये हैं कि इतनी सारी टर्म्स पैदा कर दी। देखिए यहाँ पे कितना कन्फ्यूजन हो रहा है उसके नतीजे में, और बैद नहीं है कि खुद मैंने कुछ बात गलत कह दी हो, तो ये इसकी भी गुंजाइश है। तो ये कि ये तमाम टर्म्स पैदा कर देना, जेंडर के सिलसिले में 3 हिस्सों में बांट के कन्फ्यूजन पैदा कर देना, इसकी ज़रूरत झूठ को होती है कि हमें जब तक ये सहारे नहीं मिलेंगे झूठे, तब तक हम कायम नहीं रह पाएंगे। हक़ बहुत सच्चा सिंपल है। अल्लाह ताला मर्द और औरत पैदा करता है, तमाम कायनात को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं वो अलग किस्म की उनकी आजमाइश होती है, बहुत कम तादाद उनकी है और उनके लिए शरीयत में पूरी गाइडलाइन मौजूद है, मामला ख़त्म। इसके बाद जो हकीकत को बदलने की कोशिश करता है वो गलत करता है। एक मिसाल मुझे याद आ गई,
मौलाना मौदूदी का किताबचा है, इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, एक अलग ही बात है उसमें, लेकिन मिसाल बड़ी शानदार है एक बात का बयान करने के लिए कि एक आदमी ट्रेन के दरवाजे को अपने घर का दरवाजा समझे और चलती हुई ट्रेन से ये सोच के बाहर आ जाए कि मैं अपने सहन से बाहर आ रहा हूँ या सहन में जा रहा हूँ, तो उसके ऐसा गलत सोचने से, उसकी खाम ख्याली से हकीकत नहीं बदलेगी। उसका सर टूटेगा, वो मरेगा या जो भी कुछ होगा, लेकिन अपना सर फूटने के बावजूद अगर उसको रियलाइज नहीं होता है कि मैंने गलत काम किया है, अब भी वो ट्रेन के दरवाजे को घर का दरवाजा समझता है, तो ये उसकी अपनी गलती है, लेकिन हकीकत जैसे कोई असर नहीं होगा। तो एक मर्द चाहे कपड़े पहन ले, चाहे कहता रहे, चाहे सर्जरी करा ले, कुछ करा ले, वो औरत नहीं हो सकता, वो मर्द ही है। एक औरत चाहे किसी भी किस्म के कुछ इकदाम कर ले, लहजा पैदा कर ले, हार्मोनल सर्जरी करा ले, कुछ कर ले, वो अपने जिस्म को बिगाड़ सकती है, तबाह कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो मर्द नहीं बन सकती, हकीकत नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल सच्ची सीधी बात है, इसको इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये बात अपना असर रखेगी। और इस सिलसिले में जो इक़दाम दरकार हैं, जिस तरह के कंफ्यूजन फैलाए जा रहे हैं, उसको इसके सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए, ये फिलहाल मौजू मैंने नहीं लिया अपने लिए, इस पे हम सब मिलकर किसी और वक्त सोच लेंगे। फिलहाल ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि जो कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ टर्म्स के हवाले से और इस्लाम के स्टैंड और मुस्लिम रिस्पॉन्स के हवाले से कुछ बातें जो हैं, कैसे हम इन चीज़ों को समझते हैं और कहाँ कहाँ झोल है आर्गूमेंट्स में, उनको पेश किया गया यहाँ पर, उनका इस्तेमाल करते हुए सादगी और आसानी के साथ हम इंशाल्लाह लोगों के सामने अगर उसको पेश करें तो इसमें एक असर होगा और मेरे ख्याल में लोग उसको कबूल करेंगे। जी सिस्टर इशरत। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था कि जो ये इंटरसेक्स है, इनके लिए इस्लाम ने क्या अहकाम दिए? लाइक इनहेरिटेंस का राइट होता है, तो इनको हम कैसे इनहेरिटेंस में कौन सा हिस्सा देंगे, लड़कों वाला हिस्सा या लड़कियों वाला हिस्सा? इसी तरीके से जो इनका जैसे इस्लाम ने दिया है सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, इस्लाम का तरीका जो है वो हलाल तरीका वो निकाह है, तो इनके लिए क्या है भी कि नहीं? जी, ये जो है बहुत तफसील से हमारे फिक्र में इस तरह के अहकाम मेंशन हुए हैं कि क्या डिटेल्स हैं इनकी, इंटरसेक्स जो लोग पैदा होते हैं। मैंने यहाँ पर जो जिक्र किया उसमें फोकस इस बात पर रखा और हमारे फ़ुक़हा का भी फोकस इस बात पर है कि ये जो मुखन्नस हैं, यानी इनकी जो बड़ी तादाद है 80 to 90% ये क्लासीफाई हो जाएंगे मुज़क्कर या मुअन्नस में, और जब वो क्लासीफाई हो जाएंगे मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ की बुनियाद पर, और वो क्राइटेरिया भी मैंने जिक्र कर दिए, और ये सिर्फ इतने नहीं थे बल्कि बहुत सारे थे, फ़िक़्ह की किताबों में भरी पड़ी हैं ये चीज़ें और तमाम डिस्कशंस उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब वो क्लासीफाई हो जाएंगे तो उन पर वही हुक्म, उसी हुक्म का इतलाक़ होगा जो एक आम मर्द पर या एक आम औरत पर होता है, वो मुखन्नस फिर नहीं कहलाएंगे या नहीं शुमार होंगे। जो आखिरी शक्ल बच जाती है, बहुत ही माइनस्कूल तादाद जो मुखन्नस की बच जाती है, जिसको खुनसा मुश्किल जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़ुक़हा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो बच जाते हैं, उन पर फिर इंडिविजुअल लेवल पर अहकामात आएंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं कि कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, उनका निकाह होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या सूरत होगी इसकी, इस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादा रुझान इस बात पर है कि जब उनके जिन्स क्लियर नहीं है, जब वो खुनसा मुश्किल है अपने आप में, तो वो सेक्सुअली प्लेजर महसूस करने की सलाहियत भी उनमें वैसी नहीं है जैसी आम में होती है मुज़क्कर या मुअन्नस में, क्योंकि फिजिकल प्लेजर एक आदमी महसूस करता है या तो मर्द होने की हैसियत से या औरत होने की हैसियत से। जो मुखन्नस मर्द या औरत में क्लासीफाई हो जाता है, उसके अंदर भी कमज़ोरी सही लेकिन ये गुंजाइश होती है कि वो मर्द की हैसियत से या औरत की हैसियत से वो प्लेजर महसूस कर सकता है। जो इस लायक नहीं है कि उसका जेंडर डिटरमाइन हो सके मर्द के तौर पर या औरत के तौर पर, तो उसके जो प्लेजर महसूस करने की सलाहियत है वो उस तरीके से नहीं होती है, लिहाजा उसको जो मशवरा दिया गया है वो रोज़े का और सब्र का मशवरा ज़्यादातर हमें फ़िक़्ह किताबों में मिलता है। कुछ इख्तिलाफ़ात भी हैं जिनको पेश करने का यहाँ कोई ख़ास वो नहीं है। बाकी जो अहकाम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने जिक्र किए, जैसे पर्दे के सिलसिले में है, रेशम के कपड़े और सोने के इस्तेमाल के सिलसिले में है, हज के सिलसिले में है, महरम के साथ सफ़र के सिलसिले में है। ये बहुत चंद उचटती हुई बातें थी, वरना बहुत तफसील के साथ ये अहकाम मेंशन किए गए हैं। जी जी, एक हम फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट होमोफोबिया that is given generally is that why is the government not providing legal rights and protection that they deserve from the society, as the LGBTQ people are not forcing anyone to convert into LGBTQ. So why are people adamant on converting them into straight personals? तो इसके बारे में ये बात फैक्चुअली गलत है कि वो लोगों को कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो इस काम में इंडल्ज हैं, चाहे वो जितना भी इनकार करें। और कन्वर्ट करना लोगों को एक मतलब अपने आप में एक बेसिक ह्यूमन राइट है, एक तरह से हम देख लें तो।
تو اگر ہم ان کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے انسان کے جو نظریہ ہے وہ کھلے طور پر اس کو بولنا چاہیے, اس میں کسی قسم کی دھاندلی کا یوز نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں شکایت ہے وہ ان کی دھاندلی سے ہے اور ان کی فتنہ اور فساد سے ہے, اور جس معصومیت کے ساتھ اپنی چیز کو فریڈم, ایکوالٹی اور حد یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بھی پیش کر دیتے ہیں, اس چیز سے شکایت ہے. اگر وہ کھل کر اپنے شنی نظریات کا اظہار کریں تو بہت سے لوگ جو غلط فہمی میں ان کے ساتھ آ گئے ہیں وہ خود ان سے ہٹ جائیں گے, اور ان کی تعداد کتنی کم ہے یہ ہمیں واضح ہو جائے گی. البتہ یہ فتنہ اپنے آپ میں بڑا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا ہو. حکومتوں کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے سماج میں برائیاں نہ پھیلیں. یہ افسوس کا مقام ہے کہ حکومتیں اس ذمہ داری کو اچھے سے ادا نہیں کر رہی ہیں. چنانچہ حکومت شراب کے لائسنس دیتی ہے, حکومت نہ جانے کتنے برے کاموں کے لائسنس دیتی ہے. تو بہت مختلف حکومتیں ایسی ہیں جو اس ٹرینڈ کو بھی پروموٹ کر رہی ہیں, کیونکہ اس سے ان کے اکنامک اور پولیٹیکل بہت سے قسم کے مفادات وابستہ ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن حکومتوں کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کے ہارمفل جو ٹرینڈس ہیں وہ اگر پیدا ہوں تو ان کو پنپنے نہ دیا جائے, اور اس سلسلے میں جو قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. افراد کے سلسلے میں ہم صرف بات کر سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے, اور یہ عام طور پر ہوتی بھی نہیں ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے, اور ہوتی ہوگی تو غلط ہے کہ لوگوں کو ٹارچر کرنا, غلط کرنا, مارنا پیٹنا یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ان سے بات کرنے کی ہے, ان کو کنونس کرنے کی, ان تک حقیقت کے پیغام کو لے کر پہنچنے کی ہے, ان کو راہ راست کی طرف لانے کی ہے. یہ کام ہمارا ہے. تو پیٹ کر کسی کو برابر کر دینا یہ فرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ کام تو ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی پر, لیکن فرد کو سمجھانا, اس کو حقیقت کی طرف لانا, اس چیز سے ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے, اور ان کی اس بات کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کو کنورٹ کرنے کی کوششوں سے ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. ہم حق کے علمبردار ہیں, اور حق کی ضرورت, حق کے پیاسے جہاں جہاں ہوں گے, چاہے ان کو اپنی پیاس کا اندازہ ہو یا نہ ہو, ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو حق کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. Jazakallah khair, brother Khan Yasir, for answering these questions. And Jazakallah khair to everyone for joining us today. With this, we come to an end of our program.